सुकर चुके हैं नौजवान महंगाई में जुबान टक्कर ले हमारे पिलोट पर मांगा है पंछी का This is the YouTube panel, the TBR 2020 YouTube panel. I hope अब तक मैंने कोई publicity कर दी हो इस बात की, so that you know what this is about. बहुत सारे हमारे इस साल, especially in season 2 of the TBR pod, we had quite a few people from YouTube come over और हमने उनसे बात की थी. तो मैंने सोचा कि सबको एक साथ end of year जरा इकट्ठा करें. A few people couldn't make it, but खैर, as you can see, Rana Hamza Saif is joining. We have on the show, we have in no particular order except the one I see them in, we have Gul Zaib from Teeli, whose video is now frozen. बहुत हमने सोचा कि गुल के इंटरनेट की क्या हालात हैं. Whenever you look at her internet, it freezes. But Gul is here from Teeli. She's the head of everything at Teeli, it appears. We have Asad. Asad is Dr. Saab, also known as his secret identity. He has also been on the show. एक ही स्क्रीन पे दो यार, काजी अकबर एंड इरफान जुनेजो, वो भी हैं. एंड इंट्रोडक्शन के टाइम पे आते साथ ही राना हमजा सैफ ने एक एंट्री मार दी है, जिनकी आवाज नहीं आ रही. राना साहब, आई कैन सी यू, बट आपका माइक शायद कनेक्टेड ही नहीं है. आई कांट इवन सी माइक. सैफुल्लाह राना. जरा हम एक टेक्निकल ब्रेक ले रहे हैं. हम राना साहब की आवाज जब तक नहीं आती, कोई इशू ही नहीं है भाईजान. खैर, तो मकसद ये था इस शो का, मैंने सोचा कि हम जरा इन सारे लोगों से बात करें एंड we'll find out how, because YouTube is a medium I am very invested in personally and many people are as well. I will talk to all these people who are completely different sorts of content creators and ask how their 2020 has been. क्या अच्छाइयाँ थी, क्या मुश्किलें थी, why they did what they did, etc. etc. तो गुल, आई थिंक योर इंटरनेट इज वर्किंग फाइन और हम इसका पूरा एडवांटेज उठाते हुए सबसे पहले आपसे सवाल कर लेते हैं, इससे पहले कोई बैठ पहले कि मैं गायब हूँ. हाँ, तो जरा, you've been on the show a few times. We spoke to you and Wali last year, I think, for the first time. All About Teeli was our episode. अगर मुझे याद रहा तो there'll be a card which says what the episode was. And then you showed up twice in a non-YouTube related context. Corona World Tour में खास हमारे जो on-ground researchers थे, तो you represented Pakistan and Karachi as part of that. But now we're back again talking about your job. I have forgotten once again what your role is. You were... Oh shit. राना साहब, थोड़ा वॉल्यूम माइक का अगर कम हो सके, अगर माइक का कुछ वॉल्यूम कम हो सके तो कर लीजिए. तो गुल, you were head writer at Teeli. I started off as head writer and then I became the head of content. And आपने क्योंकि वली को mention किया, तो वली as of last month has moved on to greener pastures, so I am now the general manager for Teeli. ओह भाई, मतलब सारी तीलियां जो हैं वो आपको लगाएंगी. She directs the Teelis कि किस किस को लगनी चाहिए. तो you are perhaps one of the most unique people here, क्योंकि ये बाकी सारे लोग जितने भी हैं, they are all in some aspects individual content creators. किसके घर से इतनी मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है? मोटरसाइकिल पे कौन बैठा हुआ है? अच्छा, तो या जो बात नहीं कर रहा प्लीज म्यूट कर ले. तो yeah, what I was saying is you're different because everyone is an individual content creator and not many of them, if any, none of them are doing scripted content, but you are in charge of a channel which is on YouTube. Is Teeli only on YouTube? We're also on Facebook. Also on Facebook, ठीक है. But video based content बनाते हैं आप लोग. It is scripted series, shows, there is brand integration वगैरह. तो and there appears to be little to no competition
in this field? Based on exactly what Tili does, there is no other media house that is just doing this sort of stuff. Is all of that correct so far? Like if you ask me, do I look at somebody and think they do content like us, and this is where you can find equally like the quality of content that we make, या फिर जो quality of stories हमारी हैं, या the direction that we're taking with our stories, is somebody else doing that? I feel like perhaps exactly नहीं. वो मुझे कभी कभार महसूस होता है कि वो कहीं पे कोशिश की जा रही होती है. Some people do nail it for one video, for 2 videos. But I think वो consistent production और consistent storytelling मुझे at least नहीं मिली कहीं और. Right. So without any hubris, like very objectively. Like some brands might have their own chota production setup for just themselves, इस तरह से, but there's no one-stop shop कि आप आएं और you have maybe like a campaign and someone will make your whole story for you. इस तरह से. I'm unaware of that. Yeah. ठीक है. So all of that being said, how has Tili done in as much detail as you can give us? ये जो एक साल गुजरा है, how many years has it been since Tili has been functional in this manner? I've been here for 3 years. Tili has been around for 3.5 years. Yeah. So Tili started with one sketch every month. जब मैं आई थी तो हम उसके ऊपर एक वो बहुत बड़ी चीज होती थी कि आप एक स्केच रिलीज करेंगे. वो स्केच मुझे याद है हम हर फ्राइडे रिलीज करते हैं वीडियोस. द फर्स्ट टाइम इट वाज सजेस्टेड कि किसी डिले की वजह से हम फ्राइडे को नहीं सैटरडे को रिलीज करेंगे. आई रिमेम्बर द शॉक एंड द हॉरर आई फेल्ट कि हाउ डेयर यू, क्योंकि वो एक वीडियो हमारे लिए इतनी सीक्रेट हुआ करती थी. Then we expanded and we had more videos coming out. हम sketches से भी आगे निकले. हमने conversations करना शुरू की, like slice of life conversations. Sketches are surreal. उसमें एक flip होता है कि अगर जोड़ों का दर्द है for instance, तो एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे a doctor will take you very seriously कि हाँ आपके outfit मसाइल बहुत important हैं. तालीम माफिया is a universe where the education system does behave like the mafia, और वो जो सिर्फ पैसे बनाने के लिए बैठे हैं. We went into conversations also. जिस तरह के Susar versus Damad हमारी एक सीरीज है, हमारी सीरीज है Raju and Salim, which are real people in real life and whatever they are experiencing. And then we graduated to web series. We did our very first web series last year. It was called Summer Love. And फिर हमने इस साल बिल्कुल शुरू में एक और वेब सीरीज की थी सुपर हीरोज के नाम से. एंड आई थिंक नाउ अब मैं कोविड में आ रही हूँ क्योंकि हमें 3 और वेब सीरीज करनी थी, उसमें से हम 2 नहीं कर पाए बिकॉज ब्रांड्स ऑफ कोर्स were being conservative with their budgets. उनके budget revisions हो रहे थे. So those were things and did we speak about this कि हमने no, that was another thing. For instance, we wrote out a web series and then we went into lockdown. So we got instructions कि how about we tweak this for as a COVID aware narrative. Social distancing practice हो रही है इसके अंदर हम ज्यादा लोग नहीं दिखा सकते. हम नहीं दिखाना चाहते कि वो स्कूल जा रही है पढ़ने के लिए या ऑफिस जा रही है काम करने के लिए. No shopping, no restaurants, like a very responsible narrative for the pandemic. And then of course वो भी किया गया था and then budgets were further revised, so वो एक चीज इस साल रिलीज नहीं हो सकी. We are set to release our next web series in Jan. Right. So we are very excited about that. So अब हम यहाँ पर हैं कि हम sketches भी कर रहे होते हैं और हम web series पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. And how much of the content that Tili produces is entirely dependent on sponsorship brand integration? Is there content that you guys produce fully funded by Tili / the Dawn Group? ऐसा कुछ है या is it all, does the money come only from brands? No, so that's how we started. We were releasing videos without any brands. We have had a lot of content without brands also, but we have been very fortunate that brands have also wanted to be a part of our content. So we haven't seen a lot of in the recent months. We haven't seen content without brands. But our content, like despite that, I would like to. I think this is where I assert that despite brand presence, our storytelling doesn't get affected in any way. People still enjoy the stories for what they are.
Yeah. अच्छा सब इसी तैयार तरीके से हम मैसेज राणा साहब की एंट्री वापस होने वाली है तो सब जरा तैयार हो जाएं खैर हाँ जी डू कंटिन्यू वी हैव लाइक म्यूजिक no I think he'll bring his own audio अच्छा नहीं the reason I was asking was कि COVID was obviously a big theme in 2020 हर किसी की स्टोरी में at some point I think होगा but depending वो brand वाली बात है ना कि budgets affect हो रहे हैं and again you're not like just a bunch of people making videos घर के अंदर you know अपने शौक के लिए it's like there's a business model तो उस हिसाब से मैं पूछना चाह रहा था just to get a feel of you know brands के कम होने से how is that affecting your content output So what happened so जब कोविड आया और जब ब्रांड्स के बजट रिवाइज हो रहे थे so उसमें एक ये भी था कि also their messaging was being revised कि अगर वो एक नॉन एसेंशियल ब्रांड है या उनकी प्रोडक्ट नॉन एसेंशियल है do they want to push themselves out at that time because वो चीज कहीं पे irresponsible या cold या insensitive ना ली जाए कंज्यूमर की तरफ से but then there were also brands with products जो essential होते हैं for instance if you have a company that comes out with a vertical for food delivery कि आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं हम आपका जो राशन है वो आपके घर पे पहुंचाएंगे they need to push out their messaging if there is a you know telco out there या फिर there is an ISP out there जो कहता है कि हमारा इंटरनेट तेज है और आप घर पे बैठ के जो है you know आप कंटेंट देखें घर पे बैठ के आप जो है हर चीज ऑर्डर करें I think then it's important for them to push their message out. So COVID did not affect every brand the same way. You know, some people stepped away just because that was the responsible thing to do. And some people started pushing their messaging more because that was what was required for them and for everybody else as well. Okay. We'll move on क्योंकि बहुत सारे लोग हैं and I have to divide the questions. Asad will come to you. We'll go. Asad is the next in my screen. Asad साहब आप कैसे हैं? How are you? Alhamdulillah, I'm doing well. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी. Thank you very much. I start these podcasts पूछते हुए कि सबके हालात कैसे हैं, सब खैरियत से हैं, but हम recording करने से पहले 10 मिनट से बातें कर रहे थे, तो it seems everyone is fine. Asad, we spoke. I think now it's been a few months since we spoke. Or at the time, you know, there were a lot of things that were yet to come in your life. There were things like exam dena tha ek tumhe, and you know there was stuff that was in the way of making videos and along with your partner in production. You know that were in the way, and now there have been since we last spoke. काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं. आई थिंक एग्जाम दे दिया था, एक दो ब्रेक्स ली गई हैं in video production. You started your own actual practice as a doctor. तो जरा आप समराइज करें. Not well. To be very honest, 2020 has been sort of like good and bad. Bad in a way कि मैं personal health के ऊपर मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाया है. Gained like 20 kilos in the last 1 year. Nice. इसके अलावा you know there was just so much that I was doing in my life वो किसी न किसी वजह से cancel out हो गया था. लेकिन the pandemic sort of brought out a lot of good as well. कि वो एक forced break थी जो सबको लगा दी थी. तो मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स होते हैं वो एक अजीब से रैट रेस में पड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से सारी रैट रेस रुक गई थी. एंड आई रियली एंजॉयड दैट. लाइक आई वाज लाइक ठीक है, सही है, सुकून में रहो अभी. तो आई थिंक दैट वाज गुड. उसके अलावा आई टुक सम रियली इंटरेस्टिंग स्टेप्स जहाँ पे मैंने एग्जाम अपना इस तरीके से लिया कि आई वाजंट कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, बट आई वाज लाइक नहीं, अब लेना है तो लेना है. तो एग्जाम लिया. Alhamdulillah, things are moving in that direction as well. And तो अब मेरे पास 6 महीने बाकी हैं. 6 महीने में बस मुझे कॉन्स्टेंटली सिर्फ यही है कि कंटेंट क्रिएट करना है जितना कर सकता हूँ. Somehow or the other वो मोटिवेशंस पता नहीं क्यों अफेक्ट होती हैं कि मैं चलना शुरू करता हूँ and then suddenly I'm like नहीं, फिर मैं शुरू करता हूँ कहता हूँ नहीं. So I'm trying to stay consistent and my friend Danish is helping me a lot with that. But other than that, I think things have been mostly positive. Okay. I'll come back to the consistency wali thing a bit later because there are two things मैंने जरा scan किया था ना, landscape, internet landscape.
कि किस बारे में बातें हो रही हैं यूट्यूबर्स से और क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो इट अपीयर्स कि दो ही मसले हैं। एक मसला ये है कि ब्रांड्स हमारी इज्जत नहीं करते, और दूसरा ऑडियंस कहती रहती है कि कंसिस्टेंट हो जाओ एंड वी हैव टू सैक्रिफाइस आवर हेल्थ, आवर लाइफ, आवर मेंटल स्पेस। बट हम जरा आते हैं इस वाली बात पे। मूविंग ऑन टू काजी एंड इरफान साहब, we'll start with Qazi because he comes first in the thing. Qazi साहब कैसे हैं? You we spoke to the most recently. तो आपकी Alhamdulillah, Ali bhai, you did, yes, and it was a fun conversation, I think. Thank you. तो वो I think Thank you. I do try. लाइफ स्टोरी और मोटिवेशंस वगैरह का तो उस एपिसोड में if you guys head over there that will be a much more detailed view and I think not much will have changed, but थोड़ी नासाजगी थी आपकी in that episode, वो बेहतर हो गई अब? Alhamdulillah, the dengue has passed. I am now batteries मेरी वैसे ही affected है, so I lose energy Right. from time to time, but Right. I cannot give it to anyone. Hence, Right. I'm here. Right. Is dengue contagious? So if you have dengue and a normal mosquito bites you and bites the other person, they kind of become the carrier. Right. तो आई थिंक मेरा पहला सवाल ये है कि सारी दुनिया में जब कोरोना वायरस फैल रहा था तो आपने ये नया मर्ज क्यों अपनाया? कौन सा मर्ज? डेंगू का? या व्हाई डिडंट यू? ये हिपस्टर हरकतें जो है ना तुम्हारी, ये मैं आज अली भाई देखिए, the shit finds me. Don't find the shit. The shit finds me. I don't know what to say. हाँ. Suppose मेरा खून मीठा है because आपको पता है elites जो होते हैं उनका खून ज्यादा, the bourgeoisie obviously, अच्छा, pure blood. खैर, coming back to the discussion. जी. I think पूरा 2020 तो you weren't active. You started sometime within the year, perhaps, if I'm Yes. not mistaken. Yes. How you've started a very good, excellent podcast that I'm personally a big fan of, and I think यहाँ जिसने भी देखा है उन सबको पसंद ही होगा. जरा बताएं, how has, just in a summarized format जो हमने बात की थी, how do you think the response has been? How do you think your experience has been इस podcast पे? So Ali bhai, the experience has been mostly positive due to people like yourself and the person sitting next to me. Alhamdulillah, everyone's just welcomed me. ऐसा कहीं पे भी नहीं था कि यार ये नया लड़का आ रहा है, कल का बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं थी. So it was, और जो जिन लोगों से थी उनके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है. तो वो जो है वो आप अगर कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो हमने नाम लिखे हुए हैं सबके. Right, but overall it was alhamdulillah, it's been positive, and I feel like people have been open to what I wanted to do, which is just to have a conversation. Abhi bhi thodi resistance hai. You know, people still, they're like, oh, don't talk to this guy because then your stock will go down, or you can't talk to that person, or talk to her but don't talk to him. My thing has always been कि देखो, I'm not taking a part any which way. I'm not taking sides. I just want to have a conversation, and I think for the most part, alhamdulillah, so far it's been good. Abhi bhi, you find the occasional straggler in my comments trying to flirt with one of the guests or what have you, but that's the landscape we exist in. हाँ, वो तो होता ही है. Okay. Yeah. Okay. Yeah. We'll come back to the audience welcoming and community वाले response also. That's one of the things. But चलें, we'll move on to Irfan साहब. Irfan साहब कैसे हैं? आपका 2020 was quite क्या कह सकते हैं, eventful. There was a second channel. काफी लोग जो थे वो कह रहे थे कि भाई पहला चैनल Bring Back Irfan जो I Miss the Old का, ये वो वाली वाइब थी काफी सारी. और फिर बीच में और भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी which link into something that Rana Saab also focused on, which was you worked on some merchandise. और you know, फिर बीच में first channel पे भी recently एक और वीडियो आई. And Corona really put a stop to बाहर जाना, vlog करना, etc. Even though तुमने vlog करना तो वैसे भी कम कर दिया था. But how would you summarize your 2020 in a headline? कैसा गया overall? तो I don't know exactly how to summarize it, but बहुत सारी चीजें थी जो पिछले 3-4 साल से मैं सीखता जा रहा था. वो बार नए तरीकों से मुझे लेसन वही मिल रहा था, लेकिन उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था. उसमें सबसे बड़ा लेसन ये था कि brands do not care about good content. They want maximum reach for their product. आप उनको जितना भी क्रिएटिव और वो सब कर लें. Of course, some brands are very accommodating, लेकिन generally यही चीज़ है. तो मेरा 3 साल में एक्सपीरियंस नहीं चेंज हुआ है. तो उसके लिए कुछ तो करना था. I think 2020 gave me that opportunity, that break.
तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि सही है, ब्रांड्स के बगैर सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं सिचुएशन को इफ़ आई make my own products, which I did. I made a photography course, I made a clothing line, and I'm making another course. I'm launching Lightroom presets, और उसके अलावा very soon I'll be launching my Patreon account as well. अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो you can also become a member on my second channel. वो पाकिस्तान में फीचर है नहीं, तो मैंने ये सबसे बड़ी मेरी लर्निंग ये थी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये थी कि मुझे अब इतना ब्रांड्स पे रिलाई नहीं, नो मैटर व्हाट आई एम मेकिंग, मुझे इतना रिलाई नहीं करना है जितना मैं 2020 से पहले कर रहा था। अच्छा, और जरा पिकिंग अप ऑन वो वाली बात जो काजी कहते थे अबाउट ऑडियंस वेलकमिंग वगैरह, काजी का तो चलो बिल्कुल नया चैनल था, बट तुम्हारा भी सेकंड चैनल जो आया था उस पे फिर ऑडियंस का रिस्पांस ओवरऑल कैसा रहा? ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा था, लेकिन बाद में वो भी थोड़ा ठंडा हो गया, क्योंकि मैंने पता नहीं, मतलब ऑडियंस आती है एंड दे एक्सपेक्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट, लेकिन मैंने तो एक वीडियो आ रही है कोई बहुत ही डेप्थ वाली, फिर अगली पबजी हाइलाइट्स आ रही, तो पीपल डोंट नो कि हम क्या देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो लेकिन उस पे मैंने ज्यादा टेंशन नहीं लिया। दैट्स सम, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं कुछ भी बना देता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ कि इसका स्ट्रैटेजी क्या है, इधर क्या करना है, मैं स्ट्रीम क्या करूँ। लॉट ऑफ पीपल लाइक द हॉरर स्टोरी स्ट्रीम्स दैट आई डिड, तो वो तो है और वो इसी तरह चलेगा, मुझे उस पर ज़्यादा एफर्ट डालनी भी नहीं है। माई मेन फोकस विल बी ऑब्वियसली माई मेन चैनल, एंड इफ sometime in the next year if I make a third channel in English only, so that's going to be my focus. हाँ साहब, आप ही रह गए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सॉरी मैंने ज़रा टाइमिंग पे इंसिस्ट किया, बट सब खैरियत है? हाउ आर यू डूइंग? सब ओके? अब बिल्कुल ही नहीं आ रही अब बहुत कम है, नहीं काफी कम है। अभी है? हाँ हाँ अब ठीक है, चले सेट है। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। हाँ राना साहब का सलाम। राना साहब, आप कभी व्हेन वी स्पोक, अभी उस बात को भी अब कुछ महीने हो गए जब हम बिल्कुल जुलाई में वापस आए थे, तो वन ऑफ द फर्स्ट एपिसोड्स वाज विद यू। उस वक्त हमने काफी ज्यादा बात की थी, चैनल शुरू कैसे हुआ, ट्रैवल हिस्ट्री, ये वो, और उस वक्त आई थिंक कोरोना वायरस का क्या 3-4 महीने ही हुए थे कोविड को आए हुए, चल रहा था यार। हाँ, अब जाके in your year also there have been similar developments. Second channel तुम्हारा मैं देख रहा हूँ, it's like nearly at 100K also. और तुम्हारी भी merch line, हमने उसके बारे में बात की थी कि बिल्कुल कोरोना वायरस से पहले वो तैयार थी और बिल्कुल ऐसे फिर आ गए, लेकिन इवेंचुअली वो जाके लॉन्च हुई। तो उस वक्त से लेके अब तक क्या तब्दीलियां आई हैं ओवरऑल? हाउ डू यू थिंक योर 2020 went? यार 2020 कुछ चीज़ों में अच्छा गया और कुछ में नहीं गया। अच्छा, लास्ट टाइम भी हमने यही बात की थी कि अच्छा इस तरह से गया कि बस घर आके टाइम गुजारने को मिल गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नहीं होते, फैमिली यहाँ होती है, मैं लाहौर में होता हूँ। तो उस चीज़ में मुझे ये फ़ायदा हो गया था कि मैं घर आके 3-4 महीने रहा था। और उसके अलावा एक तब मज़े की चीज़ ये हुई थी कि मेन चैनल पे मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रही है? नहीं, इट्स परफेक्ट। हाँ, तब मज़े की चीज़ ये हुई थी कि मैं सिर्फ फूड एक्सप्लोर कर रहा था पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, लेकिन वो जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं बाहर कहीं जा नहीं सकता था। तो एक नया आइडिया माइंड में जो आया था कि एक घर के खानों की एक सीरीज़ बनाई। वो घर के खानों की सीरीज़ तब तो बनी, बहुत अच्छी चली, वो सब ज़बरदस्त था, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक है। मतलब अगर मैं कहीं मिलता हूँ तो वो लोगों से, तो वो ये बोलते हैं कि वो आपकी अम्मी ने वो चीज़ बनाई थी, वो आज हम वो बनाते हैं, और ये वो इस तरह की चीज़ें बहुत हुई। वो सीरीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी गई थी। उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो हम लोग बस हुंजा वगैरह चले गए, वो बड़ा अच्छा सीन रहा। फिर सेकंड चैनल जो है उसका आइडिया थोड़ा सा पुराना था, लेकिन लॉकडाउन में उस पर काम शुरू हुआ सेकंड चैनल पे। तो वो काम होते होते जो है सेकंड चैनल की ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उसकी रीच बड़ी अच्छी आ रही है। तो अब मेरा 2020 जो है वो अच्छा एक तरह से अच्छा कह सकते हैं उसको। तो सेकंड चैनल, आई थिंक ये दिस विल आल्सो बी यूजफुल, क्योंकि मुझे शायद समझ है कि क्या फ़र्क है दोनों में, बट मेन चैनल और सेकंड चैनल में क्या सेपरेशन क्या है? यार मेन चैनल जो है वो पहले इस तरह था कि मैं व्लॉगिंग भी कर रहा था और साथ में जो है वो फूड भी बीच में ही था। तो अभी जो मेन चैनल है, मेन चैनल पे अब सिर्फ फूड है, फूड के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो ऑडियंस है
जो सिर्फ फूड देखने के लिए आ रही है कि मुझे मतलब वो चाहते हैं कि मैं उन्हें खाने दिखाऊं और ये चीज़ें करूं, वो इस टाइप का जो है वो सिर्फ मेन चैनल पे रह गया। पहले मेरा जो दिल करता था कि फूड से हट के अगर मैं कुछ बनाऊं, तो माइंड में कोई आइडियाज़ आते थे, कुछ भी आता था, वो मैं बना नहीं पाता था, क्योंकि उसकी नीश एक ऐसी है कि एक नीश बनाने का भी थोड़ा सा नुकसान होता है। वो ऐसी है कि अगर मैं फूड के अलावा वहाँ पे कुछ बनाऊंगा तो वो थोड़ा सा ऑडियंस को समझ नहीं आती कि ये क्या, बीच में ये क्या चीज़ आ गई है। तो उसके लिए सेकंड चैनल बना, और अभी ये है कि मेन पे सिर्फ फूड के अलावा कुछ नहीं, बल्कि मैंने मेन पे फूड को और ज़्यादा कर दिया। पहले जितना मतलब बीच में मैं खुद होता था उसको मैंने थोड़ा साइड पे किया, उसमें से मेन चैनल में से उसमें फूड और इन्वॉल्व कर दिया, और सेकंड चैनल पे अपनी शक्ल को मैंने 24 घंटे सामने कर दिया। ओके ठीक है। तो नाउ दैट वी हैव एन आइडिया कि हर किसी का साल इन अ नटशेल कैसे क्या, कुछ बातें थी जो कि मैंने ज़रा थ्रू माय ईयर ऑफ वाचिंग यूट्यूब एंड टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू अलग से और एक साथ मैंने सोचा कि ज़रा हम डिस्कस कर लें। Some of the themes Asad spoke about, Kaz spoke about, Irfan spoke about, and also, well, everyone I guess spoke about, is audience का हाल। तो अब 3-4 साल हो गए हैं पाकिस्तान में with a lot of people properly YouTube पे काम करते हुए। पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे नए लोग आ गए हैं, but काफ़ी ऐसे लोग भी हैं with major channels, including some of the people here and many of the other people out there with big followings, 3-4 साल से काम कर रहे हैं। Now everyone here is at a different channel size, but everyone is on YouTube and audience भी काफ़ी लोगों की shared है। So whoever wants to start first, how do you think YouTube is perceived now in Pakistan as a valid space? I suppose this is a very corporate question, so Gul, you can start. लोगों की नज़रों में what do you think the value of YouTube is? Like, do they think कि यहाँ हमें काम की चीज़ मिल सकती है, या पहले एक ज़माना था कि हाँ जी हम YouTube भी देखते हैं but main content TV पे? Are people moving away? Do they respect the idea of being a YouTuber or YouTube content creator? How is all of that functioning in your opinion? So I think एक जो ये आपका आखिरी सवाल था कि जो do they respect YouTube content creators and do they watch content on YouTube? I think इसमें as Pakistanis हमारी दो different reactions होते हैं. So I think they sort of like topify onto those two categories also. For instance, we love watching TV, we love watching films, but we don't want our children, our siblings to become actors. Writers की कोई इज्जत नहीं है. Media is still like paycheck मिलेगा नहीं मिलेगा. So watching art and being an artist, I believe, are two very different things in Pakistan. When you come to YouTube, I think YouTube पे जो content है वो जिस audience के लिए बन रहा है, उस audience के लिए content दूसरे mediums पे नहीं बन रहा, and that is why it's migrating towards YouTube. अब वो YouTube पे vlogging देखने के लिए आए या फिर web series देखने के लिए आए, जो audience आ रही है, it is definitely not being catered to elsewhere. If you look at our dramas, because other than sketches, मेरा अब baseline web series हो गया है, तो जो ड्रामा में जो representation of youth है वो तो negligible है. अगर उसमें आप देखते भी हैं Gen Z या millennial representation देखते भी हैं, तो वो इतनी reality से divorced होती है कि वो मतलब एक लतीफ़ा अपने आप में ही है कि ये क्या चीज़ चल रही है. It's not genuine, it's not authentic. That representation you do find on YouTube. So you do have people who are migrating towards this platform. Do we respect content creators? I think if you understand what this entire industry is about, I think a lot of people will start thinking of it as more credible. क्योंकि अभी I think ये भी है कि जो I think जो उनका access है content creators के लिए वो हमेशा वो वाला है कि they're doing two things. They have a day job and they're doing this on the side. Or जो proper content creators हैं, and no offense to all of those content creators who do this for a living without like that is their day job. Yeah. I think वो एक bias है जिसमें वक्त लगेगा उसको पीछे छोड़ने के लिए कि this is a legitimate industry and this is a legitimate way of earning. उसमें I think वक्त लगेगा because of the kind of people we are. The thing that this perhaps seems most applicable to मेरी नज़र में is something that both Rana and Irfan are involved in, वो vlogging वाला scene जो है.
कि बस लोग समझते थे हाँ जी बस कैमरा उठा के निकल गए और ये तो वीडियो बना के डाल दी। एक बहुत बड़ा जमाना था जब लोग नाराज थे इरफान जुनेजो के साथ कि ये क्या कर रही है, तो बस अपनी शक्ल की वीडियो बना के मैं बैंक गया, मैं दोस्त के पास गया, मैं हमजा से मिला, यूट्यूब पे डाल दिया, मतलब ये कोई क्यों देखेगा। एंड सिमिलरली राना साहब के साथ आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी यही हुआ होगा कि भाई ये कोई बात है, मतलब हम क्यों देख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन। अगर आप देख रहे हैं इसका मतलब अच्छा है। बट खैर, क्या तुम दोनों की नज़रों में, क्योंकि काजी इज डूइंग पॉडकास्ट वेरी फॉर्मल सिट डाउन मुहज़्ज़बाना थिंग, असद इज डूइंग प्रॉपर मेडिकल एजुकेशनल वीडियोस, तो आई थिंक ये सॉर्ट ऑफ स्टिग्मा शायद इतना व्लॉगिंग पे ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू दीज टू। तुम दोनों के ख्याल में कुछ ज़रा इम्प्रूवमेंट आई, इवन दो शायद तुम इतनी व्लॉगिंग अपना कर रहे हो या उसको सेग्रीगेट कर दिया हो, क्या कुछ बेहतरी आई है? एनी ईदर वन ऑफ यू कैन स्टार्ट। दोनों एक साथ ही करेंगे 100%। हाँ इरफान तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अच्छा राना यू कैन स्टार्ट। क्या तुम्हारी डू यू थिंक नहीं इरफान भी स्टार्ट करें, मैं बाद में तकल्लुफ राना हमजा ने माइक अपना अनम्यूट किया। चलो हाँ ठीक है इरफान यू कैन स्टार्ट। जो आपने सवाल पूछा उसका आंसर तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सोचा नहीं कि मैंने कभी भी मेरे कंटेंट की मार्केटेबिलिटी के बारे में नहीं सोचा। मैंने यही सोचा है कि मुझे क्या पसंद है और मैं क्या इंजॉय करूँगा बनाना। और जब मैंने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट भी किए थे तब मैं किसी ऐसे पाकिस्तान में ब्लॉगर को नहीं जानता था जो उस तरह का कंटेंट बनाए जो मैं बना रहा हूँ। देयर वर अ फ्यू पीपल हु आर मेकिंग ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस, लेकिन ये मंडेन डे टू डे लाइफ उसका मैंने ज़्यादातर लोगों को नहीं देखा था। तो आई फाउंड इट वेरी फन, वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता था कि मजा आएगा बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच केसी नेस्टैट। तो मैंने बनाना शुरू किया। उसके बाद आई डिड फेस सम रेजिस्टेंस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। उसमें वो लोग थे जो पूरी दुनिया का कंटेंट, उनको पता है कि व्लॉग्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी उनको यही मसला था कि क्यों देखें हम। और लेकिन और वो लोग भी थे जिनको शायद अंदाजा ना हो कि ये क्या होता है। बट देन आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक एक्सेप्टेंस बढ़ती गई, क्योंकि यूट्यूब, पाकिस्तान में इंटरनेट इतना सस्ता है, यूट्यूब हर कोई बंदा देखता है। अब जिस तरह मैंने बहुत दफ़ा लोगों से सवाल पूछा है कि अगर आप 5 साल 6 साल पहले अगर सी व्यू पे खड़े होकर सेल्फी लें तो आपको लोग जज करेंगे। आज इट्स वेरी नॉर्मल, किसी को कोई पलट के नहीं देखेगा अगर वो सेल्फी ले रहा है। तो आई थिंक इट्स द सेम विद दिस एज वेल। लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में मुझसे आज भी ये सवाल होता है, और बहुत से लोग, मैं Q&A करूं या मुझसे अगर कोई मिले तो वो पूछते हैं, उनको क्यूरियोसिटी होती है कि यूट्यूब से तो नहीं चल सकता किसी का गुजारा, तो आप और क्या करते हैं, आप मतलब एक्चुअली क्या करते हैं तो आप असल में कहाँ से हैं? तो अच्छा। ये अब आई डोंट नो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या और फ्लेक्स करें आप कि ये सब यूट्यूब से हो रहा है, या फिर वो टाइम के साथ शायद खुद ही पता चल जाए लोगों को। राना साहब, हैज दिस बीन सिमिलर एक्सपीरियंस फॉर यू, जिस जमाने में कि तुम्हें भी अब कुछ साल हो गए हैं करते हुए, मतलब अब सीनियर यूट्यूब क्रिएटर्स में आप भी आते हैं, तो वाज दिस कभी ये इशू था लोगों को समझाने में कि मतलब बियॉन्ड द फैक्ट कि मुझे शौक है मैं इसलिए कर रहा हूँ, बट एक जमाने के बाद तो फिर मतलब पैसे आने शुरू हो गए थे, फोकस बढ़ने लगा, कैमरास आ रहे हैं, ज्यादा मेहनतें हो रही हैं, तो क्या कुछ मुश्किल थी आम आदमी को समझाने में कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों अच्छा है, या सबने फौरन एक्सेप्ट कर लिया? यार नहीं, फॉरेन तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। इसमें इरफान भाई की जो एक बात थी कि उन्हें समझा, वो मतलब लोग पूछते हैं कि यार इसके अलावा और क्या करते हो, ये तो इस चीज़ से तो आज तक हम लड़ रहे हैं कि वो मतलब अक्सर कमेंट्स भी इस तरह के होते हैं कि यार बिजनेस क्या है तुम्हारा जो ये सब कुछ हो रहा है, और क्या काम करते हो, और ये वो तो बताओ भाई ये वाला काम जो हमारा है ये 15 मिनट में हो जाता है, बाकी हम और बहुत कुछ करते हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन आप पूछ रहे थे कि उसमें लोग ये सोचते हैं कि ये अपनी शक्ल दिखा रहे हैं तो इसका क्या मकसद है। उसमें उस चीज़ का कोई ख़ास जवाब तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा वो बाद में पता लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो आपसे इंस्पायर हो रहे होते हैं कि अब अगर कोई मतलब गालियां देने वाला कंटेंट है तो उसमें आप समझ सकते हैं कि वो कोई और इम्पैक्ट होगा, लेकिन आपको पता नहीं भी होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मोस्टली लोग होते हैं जो कमेंट नहीं कर रहे होते, वो आपको नहीं आप तक बता रहे होते कि वो आपसे क्या सीख रहे हैं या क्या हो रहा है, लेकिन वो बहुत इंस्पायर हो रहे होते हैं, तो उस चीज़ से भी बड़ा फ़र्क पड़ रहा होता है।
कि अगर आपका बड़ा नीट एंड क्लीन सा कंटेंट है, बड़ा शुगल मेला भी लग रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, इस तरह की कोई चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझना जिसने उसको तो वो दीवार में टकरे मारते रहते हैं। अच्छा, बट एक और बात जो गुल ने की थी कि रिप्रेजेंटेशन जो हमारी उम्र के लोग जो हैं, मिलेनियल, जेन जी, जो जिसमें भी आप डाल दें, वो जब नॉर्मल टीवी देखते हैं तो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट आई आल्सो हैव कि हमारे टीवी पे, जहाँ तक मुझे याद है, मैं पाकिस्तान छोड़े हुए कई साल हो गए हैं मुझे, शायद अब बहुत बेहतरी आ गई हो, लेकिन या तो न्यूज़ है या ड्रामे हैं जिसमें शादी टूट रही है, या शादी होने वाली है, या शादी हो गई है और कुछ मसले हैं, या दूसरी शादी होनी है. दिस इज एज फार एज आई नो, पाकिस्तान में ये मेजर था. बीच में कुछ खाना पकाना भी रहता है. एक ज़माने में म्यूज़िक था, वो चला गया. स्केच शोज, कॉमेडी शोज, मुझे नहीं पता कि अब हैं या नहीं है. तो अपने जैसे लोगों को यूट्यूब पे देखते हैं. देयर इज अनदर एस्पेक्ट which comes to what Dr. Saab does, Asad, and what Qazi does, where Asad makes fully educational videos, and पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अलावा मुझे नहीं याद कि टीवी पे कोई ख़ास एजुकेशनल कंटेंट बनाया गया हो. और काजी डज इंटरव्यूज विद हर किसी टाइप के पर्सन से. मतलब देयर इज नो कि हम सिर्फ पॉलिटिशियन से बात करेंगे या सिर्फ हम करंट अफेयर्स या इश्यूज वाले लोगों से बात करेंगे. तो असद फर्स्ट, देन काजी. हाउ डू यू फील द ऑडियंस हैज reacted to this sort of content? क्या लोगों को समझ आ रहा है इसकी वैल्यू क्या है? Because I'll give some context. One of the things I want to do with TPR Pod is provide an alternative that is constructive in, like, generally, मतलब हंसी मजाक ये वो सब अपनी जगह, but कोई ऐसी काम की बात जो कि मेरा ख्याल है हमारे टेलीविजन पे, नॉर्मल टीवी पे नहीं आती लोगों के लिए. Like राना साहब is doing full घुस के ट्रैवल, फूड वगैरह. इरफान जुनेजो is providing entertainment in many ways, but काफ़ी फिर डीप बातें भी हो जाती कि मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने वो किया, फिल्म मेकिंग, आर्ट वगैरह के बारे में. Qazi is talking people, you're doing medical content. Gul also spoke about like the series that she's doing which have underlying messages. Asad, do you think people are appreciating this? Are they appreciating it more now? पहले से ज़्यादा है या अभी भी बहुत टाइम है इसके बढ़ने में? How do you feel about this? पूरे पाकिस्तान के लिए आप जवाब दें. It's a very loaded question. Yeah. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि जो आपने बात की कि जहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी, एंड आई वांट टू पिच इन समथिंग एज वेल, कि YouTube एज अ प्लेटफॉर्म, अगर आप उसको देखें ना कि लोग किस तरीके से उसको परसीव करते हैं, दैट्स व्हेन यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि लोग डिफरेंट कंटेंट को किस तरीके से उसके साथ बिहेव करेंगे. तो हुआ ये कि जब एक हमारी जो मेन इंडस्ट्री थी वो डेड एंड पे पहुंच गई, जहाँ पे पॉलिटिशियंस आर द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज दैट यू हैव, वहां पे एक डेड एंड क्रिएट हो गया, हर चीज का एक फुकदान हो गया. आपके पास जो कंटेंट था, जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड था, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिसाइकल्ड कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है. एक खातून है, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, और फिर ये खवातीन भी जो है ना, इनके मसले खत्म नहीं होते. क्यों? यही कह रहे हो ना तुम भी? मैं ये कहता हूँ कि they were selling that tragedy porn on the right. तो अब हुआ ये कि अब जो सोशल मीडिया का जो असल जिसको केटर करता है वो हमारी जेन जी है. आई सी मोमिना एंड द रेस्ट ऑफ हर क्रू, उसके जो दोस्त हैं, दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. मतलब मेरा दिमाग फट जाता है देख के कि कितनी amazingly they acclimated to the different environment that is the social media, जो शायद हमारे जनरेशन और ऑब्वियसली हमसे ऊपर वाले जनरेशन नहीं समझ पाए हैं सही से अभी तक. तो जहां तक बात आ रही माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन हल्की फुल्की तरीके से हो रही है, जहाँ पे आप मेन स्ट्रीम कंटेंट को अब यूट्यूब पे दिखा रहे हैं ताकि लोग यूट्यूब पे देख सकें इसको. फिर हम लोग जैसे लोग हैं जिन्होंने हमारे सामने इस कंटेंट को जिंदा होते हुए और बढ़ते हुए देखा है. बट जेन ज़ी इज प्रोबेबली द ओनली जनरेशन एट द मोमेंट जो उसको सही से उसके साथ इवॉल्व हुई है और होगी आगे. जहाँ तक बात आती है कि लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं डिफरेंट कंटेंट के साथ, तो व्लॉगिंग वाज अमेजिंग एंड इज अमेजिंग, बिकॉज व्लॉगिंग में आप एक ऑडियंस, एक दोस्त बनाता है who's on the screen, and you day to day आपको उसके
बारे में ज्यादा इल्म होता रहता है, and you kind of get closer to them. So that's a very एक different social dynamic है जो आपने introduce करवाई. अब एजुकेशनल कंटेंट की बात आई, इंफोटेनमेंट की बात आए, और अगर पॉडकास्ट की बात आए, तो उसकी जो ऑडियंस है ना वो स्लोली इवॉल्व होगी. वी कांट जस्ट प्रेजेंट देम समथिंग न्यू एंड देन एक्सपेक्ट देम टू एम्ब्रेस इट फॉरन से. तो मैंने एक चीज फेंकी, सडनली अगले साल हो सकता है कोई एक इंजीनियर हो जो इंजीनियरिंग इंफोटेनमेंट कंटेंट बना रहा हो, तो पीपल विल गेट प्राइम्ड एंड देन इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द कंटेंट वी आर थ्रोइंग. तो लोग कहते हैं कि लोग समझते नहीं है. मैं कहता हूँ लोग नहीं समझते, दैट्स फाइन. You throw what you want to throw, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके लोग उस तरफ प्राइम हो जाएंगे. So I think it's an evolutionary process and it's going somewhere. I think it's going in the positive direction. This is I guess what I was asking, because you've been doing this for like a year and a half, I guess, at this point. So us time mein have you seen greater appreciation of the mission? Absolutely, because जो medical information है वो ऐसा लगता है कि एक आपकी एक unattainable चीज है for a layman. And what my content is essentially doing is कि वो बता रहा है कि भाई unattainable नहीं है. Right. This is not forbidden knowledge. आप Right. समझ सकते. Right. So I'm pretty sure जिस तरीके से different interesting genre से related जो लोग हैं, different subjects से related लोग हैं, जब वो सामने आएंगे तो people will get accustomed to this and they will start appreciating it more. So I think सिर्फ quality और सिर्फ quantity का फर्क है भी. जितना ज्यादा होता चला जाएगा वो डिसेंसिटाइज भी हो जाएंगे उससे और उसको एक्सेप्ट भी करने लग जाएंगे. Kazi, I think we spoke about this अभी थोड़े अरसे पहले obviously in your episode कि जो मैंने कहा था कि कोविड के टाइम पे जब बहुत सारे लोग बाहर नहीं जा सकते, but also everyone wants to be a YouTuber and everyone wants to make a vlog, क्योंकि इरफान ने जो made vlogs, तो वो अब नहीं हो सकता. फिर सबने पॉडकास्ट करना शुरू कर दिया. बहुत सारे लोग आए और उनमें से कई अब चले भी गए, बिकॉज दिस इज नॉट जो 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन जब आप 3 दफा सुनते हो तो आपकी तबीयत आजिज़ आ जाती है. बट पॉडकास्ट एज अ मीडियम, आई थिंक यूट्यूब की स्पेस जो है इन पाकिस्तान, पॉडकास्ट इज प्रोबब्ली द न्यूएस्ट पॉसिबल आई थिंक जॉनरा हियर सो फार 2020. In the time that you have been on and the people you have spoken to, because comments वगैरह और views तो अपनी जगह, but in the people that you have spoken to, how do you feel not just YouTube but podcasts specifically on and off YouTube, उनकी awareness और acceptance बेहतरी की तरफ जा रही है, या लोग क्या है यार कौन सुने 1 घंटे की बात यार, मतलब किसके पास इतना टाइम है, etc. Is that still the norm? So Ali bhai, it's changing, and I would just like to applaud Dr. Saab's hopeful commentary on this situation. I wish I was that optimistic. Lekin it is changing. Thoda karke change ho raha hai, but still, we're so our want for a savior, a hero, a celebrity to come, descend from the heavens. A certain person was trying to save the Sindhi culture and so on and so forth. Ajrak ko bachane ki koshish ho rahi thi. So they're just coming down and trying to save people. So itna zyada hai ki more often than not, people are just like, Hamza Ibrahim's great and Irfan Junejo is phenomenal, but why the fuck is Kazi talking to them? Like, who the fuck is he? Well, it doesn't matter. You see, that is the point. The point is the conversation. So why don't you pay attention to that? Like, and a lot of people are still. I think there's a deep self-hate in our psyche, and that comes from the colonial hangover where we're like यार कोई बाहर से आए. अब जैसे इरफान जुने जो है ना, ये खुद तो कैंसिल होगा, ये मुझे भी नहीं रिलैक्स करो, ठंडे रहो. अभी जैसे इरफान जुने जो है ना, साला केसी बन रहा है. मतलब नहीं, वो केसी नहीं बन रहा है. he could be इरफान. नहीं, वो कौन होता है मतलब केसी जैसा कंटेंट बनाने वाला? Do you know what I mean? Deep in our psyche there is this thing that is rooted कि यार don't dare to dream to be at that level. जैसे मैं, if I speak about these concepts, अबे अंग्रेज चले गए, इसको छोड़ दे.
नहीं नहीं मुझे नहीं छोड़ के गए थे. In fact, I followed those Munkas. I followed those fuckers there, and I was like, no, I'm taking all this knowledge. I was gonna say the other one, MFS. अच्छा. But, and then I gained whatever I could. I came back, and I'm just here to tell everyone कि इतनी कोई नायाब चीज नहीं है. You know? Yeah. मतलब they're not fundamentally different. They're human beings. We're human beings. It's all in our hands. But we must build each other up. To Dr. Saab's point and why I said it was so optimistic, एक चीज जो मुझे फील होती है कि अबे तेरी क्या औकात है ये भाई नहीं मेरी औकात की तो बात ही नहीं हो रही है. That is an erroneous form of argument. That is an ad hominem attack. No one cares about my औकात. You know, जितना भी नीच में हूँ अल्लाह मुझे माफ करे, गुनाह मेरे से बहुत हुए हैं, लेकिन no one cares because the conversation is what's important. Yeah. Do you know? So, but do you think Sorry. people are appreciating the conversations themselves? Are they growing to appreciate those, or are they still? Is it still too high a barrier for them to access? It's. I think they still come on to just see the guest and see whoever I am. They're still not paying attention. So I suppose जो कुछ लोग who know what podcasts are. Who will take the time, they appreciate it. But for the most part, still, it's like, oh, I don't want to listen to an hour of conversations. Why can't you मुख्तसर कर दो मेरे लिए? मैं आपका खाना आपके लिए चबा के आपके मुंह में डालूं. आप पागल हो क्या? आप सुनो ना बात को. मतलब ये तो अजीब बात है. Okay. 0 to 100 जाने में ना इनको फिलोसफी के मामले में under 3 seconds काली साहब जो ad hominem और ये सब कुछ एकदम से आ जाता है ना, ये फौरन से हो जाता है. ये मुझे बहुत पसंद है इनकी ये बात. जैसे ही गुल डिस्ट्रैक्ट हुए मैंने कहा जरा इनसे सवाल पूछा जाए. तो चलें, ये तो हो गई ऑडियंस की बात. All of you in some way, shape or form have participated, well, not Qazi, I think, have participated in brand related काम. ठीक है, मतलब कभी कोई वीडियो स्पॉन्सर हो गई या किसी ने बुला लिया, इस तरह से जो बातें हैं. तो 2020 वाले साल में again it's the same question. Do you think, I'm sure Irfan Junejo has some opinions on this, जो कि वो मैं उनसे पहले भी पूछ चुका हूँ, but brands की नज़र में YouTube की importance, is it moving? I think Gul is also something that you were talking about, scripting की मेहनत के perspective से. But do you think YouTube is seen still as just a platform जिसमें हम अपना एक पूरा ad चला लेंगे, या क्या लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतने टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इतनी टाइप की ये वीडियोस बना रहे हैं, हम ऑर्गेनिकली ये हमारे प्रोडक्ट को यू नो ऑल ऑफ दैट वो सब इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? इज दैट इंक्रीजिंग? आई सपोज गुल यू आर द बेस्ट पर्सन टू स्टार्ट दिस. डू यू थिंक ब्रांड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ YouTube is improving? Before I get into that, you do this a lot, by the way. Yeah. Like at least once every podcast. Yeah. There are क्योंकि हम YouTube और Facebook दोनों को लेके चलते हैं, so I feel like to completely answer this question I would need to also bring in Facebook. We have had brands initially, like for instance 1.5 साल पहले या 2 साल पहले जो अपनी presence ज़्यादा push करवाते थे, और हम of course उस चीज को resist करते थे क्योंकि advertising हमारा प्रोडक्ट और prominently दिखे या उसका नाम लें आप, that sort of thing. So हम इंटीग्रेशन करते हैं 2-3 तरीकों से. या तो हम अगर वो चीज एक चीज है जो कंज्यूम हो सकती है या इस्तेमाल की जा सकती है तो हम उसकी कंजम्पशन दिखा सकते हैं, हम उसका नाम लेके उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसके जो 1-2 अच्छे गुण हैं हम उनके बारे में बता सकते हैं, बट इन अ वेरी सीमलेस फैशन. कि अगर मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी हूँ and shampoo is something we discuss, you know, how would we naturally discuss shampoo? Right. Oh, what shiny hair you have, you know, something like that. That is exactly how I talk about hair with my mom. All the time, I can imagine. तो 1.5 साल पहले 2 साल पहले of course brands would wanted to push themselves more in the content. हम उस चीज को resist इसलिए करते थे क्योंकि advertising and native advertising don't function the same way. On a digital piece of content, your audience is going to be immediately turned off if they find themselves pulled out of the content और उनका आप ad दिखा रहे हैं. You can't cheat them like that. You can't trick them like that. It has to be very part of the story. वो चीज ज्यादा इफेक्टिव भी उसी सिचुएशन में होगी. तो हम शुरू में आई थिंक हमें बहुत हमने ज्यादा टफर कॉन्वर्जेशंस की हैं. Now we have brands, we still have sometimes, you know, we come across people who are who have opinions, and
they are not data based opinions or they're not data based understandings. तो उस चीज को हम अभी भी resist करते हैं and we try to educate them also. There are certain brands and brand representatives जो कि बहुत open भी होते हैं, जो बिला झिझक बोलते हैं कि मुझे ये बात नहीं पता है, would you educate me on this, how does this work, because the digital space is still new for almost everybody. अभी भी जब वो आते हैं content के ऊपर, they're cautiously collaborating with us, they're still a cautious partner, but they are learning. The two or three I believe ये हमारी learning हुई है web series के ऊपर. हमने जिस भी client के साथ जो भी हमारे partners थे, I remember every time the script would go out to them and it would come back, I was very pleasantly surprised when they said कि इसमें integration कम कर दें. This should feel more natural. अच्छा. It feels forced right now, at least on web series. तो एक वो बहुत खुशी महसूस होती थी कि they understand कि the lesser the better, the more organic the better. So yeah, they're open to learning about it, but वो एक उनका I think उनका वही fear जो है वो क्योंकि उनकी जो they have operated more in their traditional mediums, जिस पे आपको लोगो बड़ा करना होता है, जिस पे आपके भड़कीले रंग होते हैं, जिस पे you have to repeat the name of the brand 8 times in 30 seconds. तो वो उस understanding के साथ आ रहे होते हैं, but they're open. Some of them, most of them are. अच्छा जी इरफान जी, जो most of them are open to organic placement. Oh sorry. Oh no, एक और हाँ जी कुल. Oh, I'm so sorry. I know मैं बहुत चपड़ करती हूँ, मैं दूसरों का वक्त खा लेती हूँ, लेकिन उसमें ये भी है कि I think हमारा भी एक हमने भी बहुत सारा साल काम करके जो है 3 साल, लेकिन हमने बहुत सारी ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग करके जो है एक कन्विंसिंग केस भी बनाया है कि व्हेन वी से समथिंग, we are not coming from a point कि हम आपके पैसे दे दें लेकिन आपके ब्रांड को जो है ना हम बस आधे फ्रेम के लिए दिखाएंगे, ऐसी बात भी नहीं है. We know what has worked. Numbers आ जाते हैं फौरन से, comments आ जाते हैं, because it is so democratic, it is so transparent. तो उनको भी खुद दिखता है कि जब उन्होंने खुद ही कहा था कि हमें 4 दफा दिखाओ, तो वो क्लाइंट तो वो ऑडियंस ने कहा है कि ज्यादा नहीं हो गया. So they also understand कि हम भी किसी point of understanding से ही आ रहे हैं, हम बदतमीजी नहीं कर रहे हैं उनके साथ. Okay. जी इरफान, सॉरी, कमिंग टू इरफान फर्स्ट बिफोर असद राना साहब, क्योंकि हमारी इस बारे में काफ़ी बहस हो चुकी है, नॉट बहस आई गेस बट डिस्कशन हो चुका है इस बारे में अबाउट हाउ ब्रांड्स वांट टू बी इंटीग्रेटेड. आई डोंट वांट टू मेक दिस कॉन्वर्सेशन फुली अबाउट ब्रांडिंग, लेकिन तुम्हारे एक्सपीरियंस में विद द न्यू चैनल स्पेशली, जहाँ तुम व्लॉग तो बना ही नहीं रहे, देयर इज नॉट एज मच अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्गेनिक placement, जैसे तुम्हारी वो वाली वीडियो थी, the one where you had the Suzuki वाली गाड़ी and you went over there. I don't know if we're supposed to say, मुझे बता देना अगर वो बात बतानी नहीं थी, but इस साल भी तुमने कुछ ब्रांड कोलैबोरेशंस वगैरह की हैं. तुम्हारी नज़र में in your 2020 एक्सपीरियंस क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है या अभी भी यही है, कुछ लोगों को समझ है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप यूं कैन कर लोगों जरा आगे की तरफ करके दिखाएं? तो एक बात तो मैं ये सारी कॉन्वर्सेशन में आपको बता सकता हूँ जो अभी तक इम्प्रूव नहीं हुई है, वो ये है कि ज़्यादातर ब्रांड्स को पता नहीं कुछ मसला है स्पॉन्सर्ड का वर्ड यूज करने से. अगर कभी भी कॉन्वर्सेशन में कोई बात होती है ना कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फलाना, तो बोलते नहीं कोलैबोरेशन आप जरा कोलैबोरेशन लिख दें आप. तो वो कोलैबोरेशन आप लिखते हैं बट इट डज नॉट रियली फील लाइक ए कोलैबोरेशन. दूसरा मसला ये है कि मैं आपको एक बड़ा ही ब्रॉड आंसर दे रहा हूँ, इसकी स्पेसिफिक्स में मैं नहीं जा रहा. बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके फ्यूरर है, हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम दिया उन्होंने. तो दूसरा एक मसला ये है कि एक टर्म है जो बहुत सारे बूढ़े अंकल यूज़ करते हैं जब भी यूट्यूब कंटेंट की बात होती है, और वो टर्म ये है कि चढ़ा देना. वो मतलब कंटेंट बनाओ और उसको हर जगह चढ़ा दो. अपलोड करने को वो कहते हैं चढ़ाना, कि वो चढ़ा दो. आई एम श्योर ये सब लोगों ने सुना है, ये बहुत कॉमन है ये. लेकिन ये मतलब क्या हुआ इस बात का?
मतलब कि अपलोड करने की ये एक ट्रांसलेशन समझ लें। हाँ नहीं, बट व्हाट आर दे, मतलब उनकी नजर में ट्रांसलेशन ये है कि हम अपनी तरफ से इसको मार्केट करेंगे, हम इसको टीवी पे भी चला लेंगे और आप भी चढ़ा देना यूट्यूब पे, वो देख लेगा। अच्छा ये है। तो जहां तक ब्रांडेड कंटेंट की बात है, मैं अक्सर ब्रांड से यही सवाल पूछता हूँ। वो पहले अपना मुझे बताते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं। मैं उनसे बस ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने कभी ऐसी किसी वीडियो पे क्लिक किया है जिसमें कोई व्लॉग हो, जिसमें आपको दूध के फवायद बताए जा रहे हैं कि दूध कितना अच्छा है पीने के लिए? क्या आपने कभी ऐसी कोई वीडियो देखी है खुद से? हाँ नहीं यार, आज बड़ा मजा आएगा। तो अब मुझे भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि व्हाट वर्क्स फॉर माय ऑडियंस, व्हाट डज नॉट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी अपैरल मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी होती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, बिकॉज क्लोथ्स आर द इजीएस्ट टू इंटीग्रेट। आपको बस पहनना है और शुरू में आप बताते हैं कि इट्स इन कोलैबोरेशन विद फलाना और दैट वर्क्स। लेकिन बहुत सारे चीजें होती हैं जहाँ पे ब्रांड्स आपको आज भी सिर्फ इन्फ्लुएंसर समझते हैं, दे डोंट कंसिडर यू क्रिएटर्स। तो आपको ये बात बतानी बहुत मुश्किल। जैसे मैंने मना किया है, मुझे कुकिंग ऑयल इंटीग्रेट करना है अपने कंटेंट में, तो मैं नहीं कर सकता। मैं क्या उसके फवायद बताऊंगा? दैट्स नॉट फॉर। मेरा अगला सवाल ये भी था कि एक फर्क ये भी है within maybe you and Rana Saab are at a certain level where several of the other vlogger or individual content creators अभी सब्सक्राइबर लेवल में काफी छोटे होंगे तुम दोनों से, तो मे बी तुम लोगों के पास इतनी विजिबिलिटी है या इतना क्लाउड, यूज्ड टू बी अ वर्ड है, कि यू कैन पिक एंड चूज कि हाँ यार ये मुझे ये ब्रांड पसंद है, अगर ये मुझे अप्रोच करेंगे तो मैं इनके साथ कर रहा हूँ काम, कुकिंग ऑयल में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं करूंगा। तो आई थिंक ये एक फ्रीडम शायद तुम लोगों के पास है। आर यू चूजी दैट लेवल ऑफ चूजी कि जो चीज मुझे पसंद है मैं सिर्फ उसके साथ काम करूंगा, या आर यू विलिंग टू थोड़ा शिफ्ट योर कंटेंट आल्सो टू अकोमोडेट अ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी? आई थिंक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी से ज्यादा वो मैटर करता है कि आपको वो चैलेंज अच्छा लग रहा है या यू आर ओनली डूइंग इट फॉर द मनी। अब जैसे आई हैड नेवर मेड एन एयरलाइन रिव्यू, लेकिन व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी आई वाज वेरी हैप्पी, इवन दो इट वाज अ चैलेंज। मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि मैं आवाज अच्छी रिकॉर्ड नहीं कर सकता जहाज के अंदर, लेकिन स्टिल आई डिड इट, नोबडी केयर्ड, मुझे भी बड़ा मजा आया। तो आई हैव ये जरूरी होता है टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लेकिन अब जैसे ब्रांड्स, अब जिस लेवल पे मैं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आई एम श्योर दिस हैपेंस विद हमजा एज वेल, कि ब्रांड्स आपसे पूछते हैं अच्छा चलें अगर आपको हमारा आइडिया नहीं समझ में आ रहा तो आप अपना कोई आइडिया सजेस्ट कर दें जिसमें हमारे ये सारे पॉइंट्स इंटीग्रेट हो जाएं। तो हम वो, अगर मैं कुछ आइडिया बताता हूँ तो दे एटलीस्ट लिसन टू इट, वो कंसिडर करते हैं। मुझे शिकायत बस इस चीज की है अभी तक कि इंटीग्रेशन बड़ी सीमलेस होनी चाहिए। ये अक्सर ब्रांड्स को समझ में नहीं आता। अगर मैं दो ऑप्शन देता हूँ कि अगर आपको सीमलेस रखना है तो प्लीज मेरे तरीके से करने दें, अगर आपको सीमलेस नहीं रखना, आई गिव यू अ स्पॉन्सर्ड सेगमेंट। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय स्किल शेयर, बाय स्क्वायर स्पेस। ये वाला काम हम किसी को ये नहीं करना। अच्छा, उनको मैंने एक ब्रांड मुझे नहीं मिला आज तक जिसने बोला हाँ ये कर लें, ये बेस्ट है। बोलते नहीं, हमें सीमलेस सा आप वीडियो का हिस्सा बना दें। लेकिन फिर मुझे वो ना थोड़ा सा अनएथिकल लगता है, क्योंकि यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग, इट इज एन एड, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू पुश कि ये देखें कितने अच्छे फीचर्स हैं और ये है। तो ऑडियंस भी अब इतनी समझदार है तो वो भी पॉइंट आउट करते हैं कि ये सेल आउट हो गए। तो मुझे ये शिकायत है। राणा साहब से मैं सवाल पूछने वाला था, उनकी वीडियो बंद हो गई। अच्छा जी, वो आ गए। राणा साहब, आप स्पॉन्सरशिप वर्सेस कोलैबोरेशन वाली बात से आप बहुत अग्री कर रहे थे। तो हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बिन ये ब्रांडिंग के साथ, क्योंकि तुम्हारी जो फील्ड एक बहुत स्पेसिफिक एरिया में भी है, फूड रिलेटेड, तो मतलब एक तुम्हारा पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसर लेवल भी है, फिर एक पूरा अलग जॉनरा है खाने से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं। तो उनकी नज़र में, अच्छा, और तुम्हारे जैसे लोग इस कंटेंट वाले फील्ड में बहुत ज़्यादा नहीं है। हर कोई शायद व्लॉगर बनना आसान है, बट अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करना और यू नो खाने में घुस के उसकी डिटेल्स में चेक करना, वो हर कोई नहीं कर रहा। तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है ब्रांडिंग रिलेटेड कामों में?
यार उसमें स्पॉन्सर वाली बात बिल्कुल सही है कि इस चीज़ से पता नहीं क्या मसला है। हमारी लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बात हुई थी, यही ब्रांड्स को लेके और ये सीन है जो। तो स्पॉन्सर से उन्हें पता नहीं क्या मसला। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि अगर लिखा हुआ आ जाए ना कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फलाना, तो उसमें ऑडियंस वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है कि ठीक है भाई स्पॉन्सर है इसके अंदर, ठीक है। अगर उसमें हम बड़ा चोरी चोरी अपनी तरफ से दे रहे हैं ना कि ये स्पॉन्सर, तो वो सबको पता लग जाता है 1 मिनट में कि भाई ये मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि हाँ सब हाँ, मुझे रुके हुए नज़र आ रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, हमारे फिलहाल आ रही है आवाज। हाँ, तो उससे इस चीज़ से मसला नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ब्रांड्स को चाहिए कि वो बोलें कि भाई लिखो स्पॉन्सर है। और दूसरा मसला जो है वो अभी तक इस चीज़ में बहुत वो सीन चल रहा है कि यार क्या बात हो रही थी हमारी, हाँ, कि उनको लगे कि बहुत ज़्यादा वो ब्रांड उसके अंदर हो। अभी रिसेंटली मैंने लास्ट वीक अपने मेन चैनल पे एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनल चेन है एक, उनके साथ काम किया। तो उसमें भाई उनको जो है टाइटल तक वीडियो का उन्होंने खुद सेलेक्ट किया। मैंने उनको जो ऑप्शन मैंने दी थी कि ये टाइटल है, ये अच्छा चल सकता है, क्योंकि अपने चैनल का तो हमें पता है ना। तो वो टाइटल तक अगर ब्रांड सिलेक्ट कर रहा है तो मतलब एक अजीबो गरीब सी ये चीज़ है। और उस पर जितनी रीच आनी चाहिए थी वो नहीं आई, क्योंकि टाइटल इंतहाई वो कुछ कह नहीं सकते उसको। अच्छा तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जी इरफान साहब, हाँ, सॉरी इरफान आप क्लास में हाथ उठा लिया आपने, जी बताएं। मुझे बस ये ऐड करना है कि आई डोंट नो कि ये ब्रांड मैनेजर्स की कॉन्वर्सेशंस में क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसी एक फीलिंग आती है कभी कभी कि ब्रांड मैनेजर्स डोंट रियली केयर अबाउट नंबर्स और व्यूज और कमेंट्स और रीच। उनको बस अपनी जो मीटिंग्स होती है ना, उधर बस चौड़ा हो गई बोल हमने राना हमजा से वीडियो, अरे तुमने राना हमजा से, हमने उससे बनवाई है, हमने मुझे ये फीलिंग आती है दे डोंट रियली केयर अबाउट व्यूज, क्योंकि कभी ऐसा वो है। नहीं पूछ। मैंने पबजी के साथ काम किया, वो 1 महीने 1.5 महीने बाद तक मुझसे वीडियो इनसाइट्स मांग रहे हैं, मुझसे वो ऐसे ऐसे मेट्रिक्स मांग रहे हैं जो मुझे नहीं पता कि एग्जिस्ट करते हैं। मुझसे आज ऐसे ही तक है। एक पाकिस्तानी ब्रांड ने वीडियो पब्लिश होने के बाद ये नहीं पूछा कि भाई कुछ इनसाइट भेज दो, हमें अपना कुछ एनालिसिस करना है। एक ने नहीं मांगा। गुल, has your experience been different? Sorry, मैं राना साहब की बात रोक रहा हूँ, but you have proper meetings with brands as a regular thing, और कुछ बात हो रही थी कि उनको डेटा का पता है नहीं पता. Has your experience been different, insight related? So slightly different. हमारी वेब सीरीज के लिए फॉर इंस्टेंस जब हमारा कंप्लीट हो जाती है वेब सीरीज, तो हम 1 महीने बाद जो है वी डू शेयर मेट्रिक्स विद देम कि कितने व्यूज आए, कितनी रीच थी, दिस इज व्हाट वी प्रॉमिस, दिस इज व्हाट वी ओवर डिलीवर्ड, या फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गई, दिस इज द रीजन वी थिंक हुई है गड़बड़, दिस इज हाउ, this is a different decision we could have taken. So we have had those discussions for our web series. Very rarely हमसे very rarely जो है उस पे, I apologize for that. उस पे sketches के ऊपर मांगे गए insights, but we have, whenever they have asked them, there are a couple of brands जो के पूछते हैं. जैसे कि इरफान ने भी मेंशन किया कि ब्रांड्स को बिल्कुल नहीं परवाह होती कि वो व्यूज कितने आ रहे हैं या फिर रीच कितनी है. हमारे एक्सपीरियंस में रहा है कि व्यूज एंड रीच इज समथिंग दैट वी हैव हैड एन अपर हैंड ऑन, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट होते हैं हमारे पास कि अच्छा दिस इज समथिंग हमारी you know like 97% organic reach is like a big number to flex, so they do understand the value of that. तो हमारा एक्सपीरियंस स्लाइटली डिफरेंट रहा है. जी राना साहब, वापस जरा आपकी तरफ आते हुए, बिल्डिंग ऑन व्हाट गुल एंड इरफान साहब हैव सेड, तो ये जो तुम कह रहे थे कि उन्होंने वीडियो का टाइटल बताया और उसकी रीच इतनी नहीं हुई है कि वो, तो इससे मतलब कोई कभी इस बात को लेता है कि उनके डिसीजन की वजह से क्या इम्पैक्ट आया, या इरफान वाला सीन है कि भाई हमने राना साहब से वीडियो बना ली? नहीं, बिल्कुल नहीं यार। उनको अगर इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा हो तो मेरा ख्याल है हमें जल्दी चेंज नज़र आना शुरू हो जाए, जो कि अभी फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं भी, मोस्टली चेंज हो भी रहे हैं और मोस्टली नहीं भी हो रहे, कि अक्सर ब्रांड्स हैं जो बोलते हैं कि ये काम है, आपकी मर्ज़ी है। कि जिस तरह से अभी इस हफ्ते के अंदर मैं 4 ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, जिनमें से 2
ये बोल रहे हैं कि ये काम है और उसको जो है अपनी मर्जी से आप हमें आइडिया दें कि इस चीज़ को हम इसके अंदर किस तरह से इंटीग्रेशन कैसे हो सकती है या क्या हो सकता है। तो इस तरह के ब्रांड्स भी हैं जो बोल रहे हैं कि आपकी मर्जी, हमें सिर्फ हमारा ये प्रोडक्ट है जो आपने दिखाना है, वो किस तरह से दिखाना है ये आपकी मर्जी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो टाइटल भी खुद सेलेक्ट करवा रहे हैं। तो अभी मतलब चेंज थोड़ी बहुत आ रही है लेकिन प्रॉपरली नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए। Asad, pardon my ignorance. I know you have worked on one proper video game related Chef Asad marketing campaign. उस पे भी हम जरा on your experience we can talk about that. Have you done a lot of sponsored work on your channel, and how has, because yours is now even more specific, आपके उसमें shampoo और cooking oil वगैरह की तो इतनी applicability नहीं है, but how has that been for you in the medical field? तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो बड़ा अच्छा रहा है, पार्टली बिकॉज जो मेरे दोस्त हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब स्फीयर के अंदर पहले से काम कर रहे थे, तो उनकी वजह से मेरे अंदर कुछ वैल्यूज थी जो मैंने उसको मेंटेन रखा है। एंड तो थिंग्स दैट डोंट गो विद आवर इंटेग्रिटी, दैट डोंट गो विद आवर ब्रांड वैल्यू, वी डू नॉट वर्क विद, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर ये होता है नॉन स्पेसिफिक एग्जांपल्स ताकि हम समझ जाएं क्या बात हो रही है। मैं स्पेसिफिक एग्जांपल बता देता हूँ। Oh shit. There's a cosmetic brand that was selling keratin sprays. Okay. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमने आपकी बॉल्डनेस वाली वीडियो देखी थी, वी फेल्ट कि ये हमारे साथ अच्छा इंटीग्रेट करेगा। मैं वाज लाइक नहीं, मैं बॉल्डनेस के अंदर लोगों को इनसिक्योर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि भाई बी सिक्योर विद योर बॉल्डनेस, दैट्स ओके। तो आई हैड टू टर्न देम डाउन। एंड सिमिलरली एक आया था विटामिन का, वो तो वी ऑल नो कि विटामिन इज यू नो जस्ट अ फ्रॉड। तो Sorry, do we know this? We all know this. मुझे नहीं पता था ये। विटामिन अच्छा चलो। ह्यूज स्कैम। खैर, तो मैंने कहा भाई नहीं, मैं सुपर फूड्स और विटामिन ये सब चीजें नहीं प्रमोट कर सकता, आई कांट डू दैट, इट गोस कंप्लीटली अगेंस्ट व्हाट आई स्टैंड फॉर। तो एंड आई एम ग्लैड कि मेरे जो पार्टनर थे इसके अंदर वो वाज फुली सपोर्टिव ऑफ दैट एज वेल। जितने ब्रांड्स अभी तक हमारे साथ काम किया है वो या तो दे वांट आवर प्लेटफॉर्म, लेकिन प्लेटफॉर्म छोटा है, तो उससे ज्यादा व्हाट वी हैव टू ऑफर इज गुड प्रोडक्शन एंड गुड डिलीवरी। वो भी एक मेरा प्रोडक्ट बन गया है फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। तो उसकी वजह से फिर इंफोटेनमेंट वाली जो चीजें होती हैं, इंफोमर्शियल वाली चीजें होती हैं, वो करने का मौका मिला है बहुत सारा। I'm currently working with an app that targets specifically for telemedicine. Right. तो उसकी कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। We worked on a startup की एप्लीकेशन है जो sells insurance. Right. ठीक है। और अभी recently we worked with a milk producing company, dairy product. तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें हैंडल किया। They were like, just do whatever you want, we already love your work. तो आप जिस तरह से भी इंटीग्रेट करेंगे it will be fine. ठीक है, तो हमने उनको बैक एंड फोर्थ इतना ज्यादा नहीं करना पड़ा। They weren't very tricky about it. तो मेरा पर्सनली अभी तक एक्सपीरियंस सही रहा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट हैज बीन अ वेरी टाइनी एक्सपीरियंस एज वेल। तो बट मैं जो यहाँ पे एक बात करना चाह रहा था वो ये था कि जिस तरीके से कंटेंट क्रिएटर इवॉल्व होता है और वो अपने साथ साथ ऑडियंस को भी इवॉल्व करता है, एट द सेम टाइम दे आल्सो इवॉल्व द ब्रांड एंड देयर मार्केटिंग टेक्निक्स विद देम। तो अब जब आप देखें कि 10 साल पहले यूट्यूब देख लें कि अगर कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगाता था अपने वीडियो चैनल के ऊपर, तो लोग उसको चाहे वो उसे एक्नॉलेज भी कर ले, वो डायरेक्टली सेल आउट हो जाता था। ठीक है, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग कि हाँ यार ये एक प्रॉपर काम है एंड दिस इज हाउ दे गेटिंग पेड, वी शुड सपोर्ट देम। अच्छा, इस तरीके से हुआ कि एक तो सीमलेस इंटीग्रेशन होने लगी। फिर इफ यू वॉच प्यूरीफाई वीडियोस, तो अगर वो कुछ प्रोडक्ट्स खुद यूज नहीं करता तो वो जानबूझ के दिखाता है कि मैं यूज नहीं करता, लेकिन इन्होंने स्पॉन्सर किया है। अच्छा, दैट वर्क्स फॉर हिम, दैट वर्क्स फॉर हिम, ग्रेट। ठीक है, तो द पॉइंट इज नॉट कि इंटीग्रेशन अच्छी जरूरी है या बिल्कुल ब्लेटेंटली बता दें दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस, या अगर वो आपके ब्रांड के साथ जा भी नहीं रहा तब भी आप उसको नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आई थिंक दानिश अली इज इवॉल्विंग विद दैट एज वेल, कि जहाँ पे वो कहता है
यार उन्होंने पैसे दिए, हाँ उन्होंने दे दिए पैसे, चलो ठीक है इनके बारे में बात कर लेते हैं. So he acknowledges his sellout position and then he turns it into a joke. And I think that's creative and that's very intelligent. हाँ, वेलकम जी काजी साहब, हाथ उठा लिया आपने तो क्लास में आपका नाम आ गया. Sorry. Before you say what you're going to say, I also want to know, okay, have you so far, we didn't talk about this in our episode, have you been contacted or are you considering any sort of brand collaboration opportunities? Podcast की दुनिया में, as far as I know, it's basically वो तो खुले ही ads आते हैं कि ये हमारे sponsor हैं, आप ये offer code use कर लें, etc etc. पाकिस्तान में I'm not sure what the podcast sponsorship environment is, but आपकी मेज पे अक्सर मॉन्स्टर एनर्जी के कैंस रखे होते हैं, तो अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं बाय मॉन्स्टर तो चलेंगे हमें एक्सक्लूसिव एक स्कूप दे दें. बट यू वर आल्सो गोइंग टू से समथिंग अबाउट व्हाट असद हैज बीन सेइंग. I'll get to. So I'm not sponsored by Monster or Red Bull. It's just an illness at this point. I consume way too much. Thank you. Way too many. And I consume way too many. What I was going to say before I get to, I've been offered a few opportunities. They've been very interesting. But आप सही बोल रहे हो कि podcast में ज़्यादातर यही होता है, the kind of ads that are not preferred. Where before the podcast begins, I'll be like, oh, by the way, I'm sponsored by, inshallah, by whoever good, this company or whatever. I wouldn't mind that, but जो मेरे साथ मुझे जो offers हुए, that I really did mind and I took offense to it. लेकिन उससे पहले प्लीज बता दो किस तरह की ऑफर थी वो. जी अच्छा, पहले बता दूं तो दो तीन बार मुझे ये बताया गया. पहली बात, माय नेम इज काजी अकबर. इट्स नॉट क्या कहेगा काजी, दैट्स नॉट माय फकिंग नेम, राइट? सो दे लिटरली दे कम अप टू मी, हैंड इन माय फेस, ओ क्या कहेगा काजी. आई एम लाइक अस्सलाम वालेकुम, क्या काजी अस्सलाम वालेकुम कहेगा, जाहिर है. You know what I mean? So and then they come over to me and they're like, oh, so I have this phenomenal idea. I'm like, oh, you do? They're like, yeah, it's my brainchild. I'm like, kya kahega kazi is your brainchild. Very interesting. Please tell me more about this. And they're like, all right, so here's what you got to do. I'm like, all right. They're like, bring all of your equipment. I'm like, all of my equipment. So the mics, the cameras, everything. They're like, yeah, all of your equipment. I'm like, fantastic. All of my equipment to our place, to your place. Yeah. And then interview whoever you want. हैं? Oh, अच्छा, the studio is theirs. जी जगह की नहीं, स्टूडियो भी नहीं है, जगह की जो है मशहूरी होगी. मैंने बोला यार पहली बात तो मेरी ऐसी कोई औकात नहीं है कि आप मुझे बुला रहे हो अपनी, like a restaurant or something. देखिए बस ना. अच्छा बस करें ना. तो and then they're like, all right, so bring all your stuff, interview whoever you want. And that I wasn't okay with, right? That's the tantamount to saying, oh, you know, do it for the exposure or whatever. That's tantamount to that nonsensical statement. Was there money involved? या वो तुम्हें exposure? There was no money. भाई, मतलब हम आपको बुला रहे हैं, you know, we're being so nice to you. I'm like, don't be nice to me, I guess. Yeah. Like, you know. एहसान है. जी बिल्कुल, मेरे ऊपर इतना सारा. But जो डॉक्टर साहब दूसरी बात कर रहे थे ना, I think it's very interesting कि brands don't want to just, or Irfan bhai बोल रहे थे कि brands don't just want to say this, have you say this कि भाई this video is sponsored by such and such and on to the content now, or do the content and then say it afterwards. I think that also flows into how many people take offense at people smoking on screen. Okay. जैसे पूरे अखे कराची में जो है कोई सिगरेट नहीं पीता है. पीते हैं जाहिर है, लेकिन मानना नहीं है. You know, I think maybe I'm stretching it. Okay. Maybe I'm stretching it. ना जब एडिट कर रहे हो तो इधर एक बॉर्डर लगा दीजिए. हम एक साथ नहीं थे. but you know, maybe but there's something there where you're just like, you know, there's cognitive dissonance where हमने कहना कुछ है, करना कुछ है. It's the same as, you know, I won't say it, a religious example आ रहा था. But I'll message you later. But it's that, ना, it's कि भाई नहीं, seamlessly उनको बताओ कि you know हमारी चीज खरीद लें. यहाँ पे इंसेप्शन थोड़ी चल रही है यार. नहीं, I think it's in the choice of words. जो इरफान कह रहा था कि कोलैबोरेशन के बजाय स्पॉन्सरशिप, हाँ आता हूँ, कोलैबोरेशन के बजाय स्पॉन्सरशिप कह दें. कोलैबोरेशन मीन्स कि ये इरफान जनेजो और ग्लो एंड लवली जो हैं वो दे लाइक ईच अदर और उन्होंने काम किया. अगर स्पॉन्सरशिप है, हाँ,
अगर स्पॉन्सरशिप है तो इसका मतलब है कि ये तो देखें, इरफान जनेजो को पता नहीं हम पसंद थे नहीं थे, हमने उनको पैसे दे दिए तो उन्होंने ये बात कर दी। आई थिंक लोग क्या कहेंगे वाली बात जो है ना वो आया था। जी इरफान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि I'd be मैंने बहुत से मीटिंग्स में ये पिच किया है आइडिया, और ब्रांड्स अग्री विद इट, बट उनके पास इतनी पावर नहीं होती क्योंकि दे वर्क फ्रॉम कैंपेन टू कैंपेन, उससे लंबी उनकी सोच होती नहीं है। तो मैंने बहुत से मीटिंग्स में ये बोला है कि देखें, वीडियो पर वीडियो काम करने से अच्छा है कि वी डू अ लॉन्ग टर्म डील जिसमें इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। नेचुरली इफ आई यूज एप्पल, अगर एप्पल कभी पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो मुझे उसको बेचने की जरूरत नहीं है, इट ऑलरेडी इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। इसी तरह देयर आर क्लोथ्स, द कंप्यूटर आई यूज और द कैमरास दैट आई यूज, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तो ब्रांड्स को समझ में आती है बिकॉज दे डू द सेम थिंग विद सेलिब्रिटीज। 1 साल की डील हो गई, 2 साल की डील, बट दे डोंट वांट टू डू दिस विद क्रिएटर्स फॉर सम रीजन। क्या ये शुरू से तुम्हारा सेम एक्सपीरियंस रहा या अभी कुछ बेहतरी आ रही है इसमें? काफी बेहतरी आ रही है क्योंकि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे उनको लगता है कि यार अगर हम इससे एक साल की डील कर लें, तो जैसे मेरी ये कॉन्वर्सेशन हो रही है अभी एक ब्रांड से कि मैं 1 साल तक किसी और बेवरेज ब्रांड के लिए काम नहीं करूंगा, आई जस्ट डू योर कंटेंट। लेकिन वो अभी अनश्योर हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको क्या ऑफर कर सकते हैं। इट्स नॉट इवन अबाउट द मनी। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटीज ऐसी चाहिए जो कोई और मुझे नहीं दे पाए। तो उनको उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है फॉर दिस मॉडल फॉर सेलिब्रिटीज, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्रिएटर्स के साथ हम ये मॉडल कैसे चलाएं। स्पीकिंग ऑफ ये सेलिब्रिटीज वाली बात, सेलिब्रिटी मीन्स यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ फेम। अब तुम और राना साहब जो, यू आर एट अ मच हायर लेवल देन द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। लेकिन जब तुमने शुरू किया था इरफान, उस वक्त नोकिया ने तुम्हारे साथ काम किया था फॉर द फुटबॉल स्टफ और ये वो, एंड तुम्हारे लिए दिस वाज अ बिग डील कि मेरे तो अभी सिर्फ इतने से सब्सक्राइबर हैं, उसको पता नहीं 6000 थे कितने थे, और फिर भी ये लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो बोथ इरफान एंड राना, डू यू थिंक कि तुम लोगों की अपॉर्चुनिटीज आई थिंक एक अलग है, बट डू यू थिंक ब्रांड्स के जहन में गुंजाइश है कि हम बेशक हम छोटे बंदे को स्पॉन्सर करें लेकिन हम उससे अच्छा काम निकलवा सकते हैं, या मेजॉरिटी ब्रांड्स बस देख रहे हैं कि इसकी रीच कितनी है, बस इसको बड़े बड़े को पकड़ो? बस ये है, और ये आपको बताया अभी असद ने कि ब्रांड्स बोल रहे हैं उनको कि हमें आपका प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, हमें आपकी डिलीवरी चाहिए और आपका प्रोडक्ट चाहिए। तो ये हो रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली उसमें इतना मजा नहीं। मैंने किया 1-2 दफा ऐसा काम, लेकिन मुझे उसमें इतना शौक नहीं, मुझे उसमें इतना मजा नहीं आया क्योंकि फिर तो वो पूरा ही प्रोडक्ट उनका है। वो तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि मेरी ऑडियंस है और मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस के लिए क्या काम है। वो बोलेंगे, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो वो अगर वो बोलते हैं कि पूरी वीडियो में आप टॉप लेफ्ट पे लोगो लगा दें, मैं उस पर कोई उनको आर्ग्यूमेंट दे ही नहीं सकता। तो आई विल बी मेकिंग स्टफ दैट आई विल नॉट बी प्राउड ऑफ। तो हो रहा है ये, लेकिन मुझे वो मॉडल इतना मजे का नहीं लगता। जी राना साहब, क्या आप, असद यू आल्सो, क्या आप दोनों के ख्याल में दिस इज इन लाइन विद योर एक्सपीरियंस? बहुत कम ऐसा है, बहुत कम है, मतलब बहुत रेयर इसको कह सकते हैं। लेकिन मुझे जो पहला स्पॉन्सर मिला था वो 1000 सब्सक्राइबर पे मिला था। लेकिन ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं इस लेवल पे आके। कोई नए लोग अगर देख रहे हो तो वो इस चीज़ को ना सोचने लग जाए कि यार हम तो 10-15 हज़ार पे बैठे हैं और हमें अभी तक नहीं मिला। तो 1000 पे एक मिला था, 5000 सब्सक्राइबर पे एक मिला था, लेकिन वो कोई बड़े ब्रांड्स नहीं थे, वो कोई छोटे, मतलब इस तरह से कोई भी चीज़ें हो सकती हैं वो थे। और उसके बाद फिर जो है वो किसी और लेवल पे। लेकिन जो बड़े ब्रांड्स हैं वो बहुत कम अपने जो है ना वो करते हैं किसी नॉर्मल सब्सक्राइबर वाले लोगों को, या जिनकी रीच अभी कम है। और ये होना चाहिए क्योंकि अक्सर लोग ऐसे हैं जिनके हो सकता है सब्सक्राइबर ज़्यादा ना हो लेकिन काम बहुत अच्छा हो, तो ब्रांड्स अगर उनको करें तो वो काम अच्छा निकल सकता है। लेकिन एट द एंड ब्रांड को रीच चाहिए पाकिस्तान में, तो उनको भाई बस अपने एनालिटिक्स भेज दें एक हफ्ते बाद। मैं जब मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं थे तो आई यूज्ड टू गो इनटू मीटिंग्स एंड उनको काम मेरा फिर भी अच्छा लगता था। तो वो मुझे बोलते थे नहीं आपके इतने नंबर्स नहीं है ना, तो मैं उनको बोलता था देखें आई एम चार्जिंग फॉर द प्रोडक्ट और मेरी शक्ल, आप इसके ऊपर बूस्ट लगा दें, आप फेसबुक स्पॉन्सर्ड कर दें और उसके पैसे मेरे उसमें से बजट में से काट लें, आई डोंट माइंड। तो
जब मुझे वो कॉन्वर्सेशन सूट करती थी तो मैं वो बोलता था कि ये तो सब मेरी इक्विपमेंट के पैसे, नाउ आई से कि भाई मेरा चैनल है और रीच है, इसके पैसे आप मुझे, तो मैं कॉन्वर्सेशन अपने फेवर में इसी तरह लेके आता था। I think आगे जाके it does make sense because there are so many people starting work on YouTube or Instagram वगैरह. It would make sense for there to be guidelines on how best to deal with brands based on your size. But खैर, Asad, you wanted to say something before we move on to the. वो जो इरफान भाई ने बात की कि वो वाला मॉडल कि आप किसी और के लिए एक प्रोडक्ट बनाएं, वो वही बात है कि आप उसके ऊपर अगर जब बात की जाए तो इट डिपेंड्स, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंस। जैसे कि अगर इरफान भाई हैं, उनके चैनल के ऊपर व्हाट ही इज सेलिंग इज हिज पर्सनालिटी एंड हिज आर्ट, ठीक है। On my channel, I'm sort of selling information, ठीक है। तो अब मुझे इसमें ये चीज रियलाइज होनी शुरू हुई कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ठीक है, इज मेरे हिसाब से इज लेस आर्ट एंड मोर इन्फो। तो क्या मैं वो इंफॉर्मेशन वाली चीज उनको डिलीवर कर सकता हूँ? एंड यूजुअली इट हैज वर्कड आउट। लेकिन वही बात है कि अगर मैं इनकी शूज में अपने आप को रख के देखूं तो इट फील्स लाइक कि मैं किसी ऐसे काम के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहूंगा जो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। तो व्हाई वुड आई वर्क ऑन समथिंग फॉर समवन एल्स एंड हैव माई सेल्फ इन इट? आई अंडरस्टैंड दैट, बट कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनका काम, जिनकी वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनके साथ आप अलाइन कर सकते हैं, अलाइन विद योर थॉट प्रोसेस एंड what you want to achieve through whatever you're doing. ठीक है, तो आखिरी बात मुझे ये करनी थी कि इस साल, now this is something that I don't know how much each of you will want to participate in, लेकिन पाकिस्तान में with the increase of internet reach और सोशल मीडिया की पहुंच और YouTube और Instagram और ये सब पे लोग आए जा रहे हैं, there is a bit of tension with regards to लोग अपने चैनल पे क्या बात कितने खुल के कह सकते हैं, नहीं कह सकते, इस तरह की बातें। इसका नतीजा एक सर्टेन ऑडियंस लेवल क्रॉस करने के बाद आपकी ऑडियंस में से भी हो सकता है कि आपके लोग सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप फट गए और आप वायरल हो गए, और पहले जहाँ आपकी 2000 की ऑडियंस थी जिसमें 100% सपोर्ट था, अब आपकी 80,000 की ऑडियंस है जिसमें से 50,000 जो है वो कह सकते हैं कि भाई ये क्या बात कर दी, मैंने तो इसलिए ज्वाइन नहीं किया था। प्लस देयर इज अ गवर्नमेंट एंगल, जहां हमारी हुकूमत भी अक्सर कहना चाहती है कि सोशल मीडिया कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर करें और हम उनका कंटेंट हम अप्रूव करेंगे, और हो सकता है यूट्यूबर्स को लाइसेंस रखना पड़े। We can start again with Gul. You are the most proper media corporate machine type level. Is this a consideration? Like you're a company, right? It just sounds like a set of insults. No, you're not just a person. You're an organization, और उस level पे काफी चीजें बहुत formalize हो जाती हैं, especially because there is some connection between Teeli and Dawn, which is an actual news company, or that might bring some baggage of its own. तो वो मैं पूछना ये चाह रहा था कि मेरी नज़र में, बिकॉज मैं ट्विटर पे बहुत होता हूँ और ट्विटर पे हम ये सारे मसले डिस्कस करते हैं, तो मेरी नज़र में दिस हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट, दिस जस्ट द मेंशन ऑफ censorship or freedom of speech or haters or cancel or ये वो. How much of this is something that you consider in your day to day? Has it increased? Has it stayed the same? साल के शुरू से लेके अब तक, do you think it will change in the future? How much are you willing to say? So we have been always very careful, क्योंकि जिस तरह के you mentioned कि we have a parent company, Dawn है, हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते. So like हम अगर if it's a family of companies, अगर हम छोटे बच्चे हैं खानदान के, हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जो फिर बड़ों को डील करनी पड़े किसी और तरीके से. So we stay away from the topics that one content creator should stay away from and just be like Right. safe. तो हम religious चीजों से दूर रहते हैं, हम पॉलिटिकल चीजों से दूर रहने की कोशिश करते हैं. जाहिर सी बात है हमारा
क्योंकि हमारी ब्रेड एंड बटर की जो शुरुआत है वो सोशल सैटायर से हुई थी, एंड इवन इफ इट वाजंट सोशल सैटायर देयर वर स्टिल जस्ट वीडियोस आउट देयर फॉर sheer entertainment. I think social satire is something that people responded to most. तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है इसको और बनाते हैं. तो we have to be very careful in what we are saying. कि हम पाकिस्तानियों के behavior पे बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को कुछ नहीं कह रहे हैं. You know, it's a very delicate sentiment that we have to deal with. But on the license and censorship thing, ये बीच में एक शोशा बहुत बड़ा शोशा आया था, like सब हिल के रह गए थे. So many people messaged me for confirmations कि is this happening? Then I was asking Wali, then I was asking other people कि is this happening? तो मैंने जाके पूरा वो आर्टिकल पढ़ा या वो प्रेस रिलीज थी जो भी चीज थी, और मुझे इतना गुस्सा आया था उस आर्टिकल को पढ़ के. उसमें आई रिमेम्बर लिखा हुआ था कि चूंकि लोग जो है ट्रेडिशनल मीडियम्स पे से हट के जो है डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए डिजिटल को लाइसेंस करना चाहिए. तो द अंडरस्टैंडिंग जो एटलीस्ट उस सेंटेंस की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एंड प्लीज लाइक इवन ये पॉडकास्ट रिलीज होने के बाद अगर किसी को लगता है कि मेरी गलत अंडरस्टैंडिंग थी, आई वुड लव टू बी करेक्टेड ऑन दिस, बट माई अंडरस्टैंडिंग वाज कि हम बुरा कंटेंट बनाते हैं टीवी के ऊपर, rather than fixing that, rather than pushing ourselves कि oh if we have better competition or if we have people moving away from us, what is the problem, let's address that. Rather than fixing that, your responses या your reaction is to कि किस तरह से वहां पे जहां पे बेहतर काम हो रहा है या फिर जहां पे लोग जा रहे हैं उसको क्लॉक कर दें आप. I think politics is always going to be something that is going to be either on the periphery, abhi hai periphery pe, it might have a more pronounced presence in the future. But just to give context, I think बाकी लोग भी यही करते होंगे, but TPR pod पे we stay away from any religious बहस मुबाहिसा हंसी मजाक. Same for politics. Pak Army Zindabad, love you 100%. All of that stuff. Not because you know हमें बैकलैश का डर है, जो कि है, रिजवान को बहुत टेंशन है क्योंकि वो लाहौर में रहता है, but also because हमें लगता है कि you know this is not something we're interested in talking about on our platform. So maybe that's some motivation for someone else. But इरफान साहब आप क्या कहना चाहेंगे haters और government के बारे में? ऐसे मैं बहुत कुछ कहना है मुझे, अगर मैं बहुत लंबा चला जाऊं ना तो मुझे रोक दीजिए. मतलब थोड़े मुख्तसर अंदाज में you have many feelings. जब आप ये सवाल पूछ रहे थे तो मुझे सबसे पहले ये लगा कि मे बी आई एम द ओनली वन. उससे पहले मुझे लगता था कि शायद मुझे ही ये लग रहा है, लेकिन आपका सवाल सुनने के बाद और बाकी लोगों का रिएक्शन देखने मुझे बड़ी तसल्ली मिली कि आई एम नॉट द ओनली वन. मेरा ख्याल ये है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसके लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ. पहले जब मेरा चैनल काफ़ी सब्सक्राइबर्स में छोटा था तो मुझे लगता था कि कम्युनिटी है जिसमें सारे मेरे दोस्त हैं और दोस्तों से आप डिसएग्री कर सकते हैं. आई डिसएग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही वेरी स्ट्रांगली बिलीव्स इन. ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे जो भी चीज़ बहुत जोर से बात करनी होती थी, मुझे इफेक्ट की है, मैं उसके बारे में बात करता था, वेदर इट्स सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, आई डिडंट केयर. मेरी ग्रुप, इट्स अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स वेयर आई कैन टॉक, ये वो. अब मैंने वो सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी और मैं नहीं चाहता कि वो वीडियोस कोई देखे. नाउ आई स्टे अवे फ्रॉम दीस टॉपिक्स क्योंकि आई हैव एक्चुअली गॉटन डेथ थ्रेट्स. तो मैं उनसे दूर रहता हूँ. डेथ थ्रेट की, इंटरनेट पे डेथ थ्रेट की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि आपको पता नहीं है वो बंदा एक्चुअली आपको ट्रैक करेगा या वैसे घर में बोर हो रहा है. तो बट आप उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते. तो मैं उन चीज़ों से दूर रहता हूँ और मुझे ये लगता है, ये बात मैंने भी अपनी एक्सट्रीम में कही थी कि अभी डॉक्टर साहब जितने सब्सक्राइबर डॉक्टर साहब के हैं या TPR के हैं या काजी के हैं, इस लेवल पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो बहुत लाइक माइंडेड हो. हाँ. लेकिन एक दफा जब आप मेन स्ट्रीम हो जाते हैं ना, मैं मोमिना को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उन्हें उसको हमेशा से, मुझे बहुत डर लगता है कि जिस दिन मोमिना बहुत मिलियन 2 मिलियन, उसकी जिंदगी अजाब हो जाएगी. उसकी वो वीडियोस पुरानी उठ के क्रिटिसाइज होंगी जो अभी किसी ने नोटिस भी नहीं की. तो इस चीज से मुझे डर लगता है क्योंकि जितना आप मेन स्ट्रीम होते हैं उतना पीपल जस्ट वांट टू वॉच योर कंटेंट बिकॉज नाम सुना है, मेन स्ट्रीम हो गए आप, इवन इफ दे डोंट अग्री विद यू.
और जहाँ तक बात है ये सेंसरशिप की, तो मुझे सबसे इसका प्रैक्टिकल, जिस तरह मैंने ब्रांड्स का, हम बात करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, एक प्रॉपर सोल्यूशन मैंने निकाला कि आई मेक माई ओन प्रोडक्ट्स। तो इसी तरह इसका सोल्यूशन ये है कि आई मेक एन इंग्लिश चैनल, जहाँ पे शुरू में थोड़ा मुझे मुश्किल होगा, आई स्ट्रगल टू कनेक्ट विद एन इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस, लेकिन इवेंचुअली फॉर द लॉन्ग टर्म आई थिंक वो एक बेहतर तरीका है, रादर देन आप हर वक्त एक एंजाइटी में बैठे रहें कि, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन पाकिस्तान में लाइसेंसिंग यूट्यूबर्स को लेनी पड़ेगी, मैं उस कैटेगरी में आऊँगा जिनको लाइसेंसिंग तो लेनी पड़ेगी। तो अब फिर आप बाउंड हो जाएंगे, फिर पॉजिटिव इमेज ओनली, और फिर इट वोंट बी फन एनीमोर, इट विल बिकम अ जॉब। तो मैंने ये सोल्यूशन रखा हुआ है। काजी और असद, मैं I'll just come to you in a second. राना साहब, आपकी वीडियोस जो हैं उसमें मैंने कोई खास नेगेटिविटी वाली वाइब नहीं देखी कि किसी को ना क्रिटिसाइज करते हुए इस तरह, मैंने इस तरह का सीन नहीं देखा। यू कीप इट फुली पॉजिटिव। लेकिन ऑडियंस तुम्हारी भी बहुत बड़ी है, और जब बहुत बड़ी ऑडियंस हो जाती है तो उसमें फिर गुंजाइश बढ़ जाती है लोगों के एतराज की, हेटर्स की, इसकी उसकी। इज दिस समथिंग दैट यू आर कंसर्न्ड अबाउट फिलहाल, या तुम्हें लगता है कि मैं अपना काम बस करता रहूंगा, जो थोड़े बहुत लोग हैं वो शोर मचाते रहें और बाकी खैर है? यार इसमें शुरू में वाकई इस तरह होता है कि शुरू में बंदे को लग रहा होता है कि ये सारी अपनी ही एक कम्युनिटी है, मतलब कोई प्रेशर नहीं होता है स्टार्ट के अंदर, कि बंदे को बड़ा नॉर्मल सा फील हो रहा होता है कि सही है। शुरू में इतना मसला नहीं होता, लेकिन बाद में वो एक ना प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि बहुत लोग देख रहे हैं उसके अंदर। मोस्टली मैं तो अगर वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके कुछ घंटे, 1-2 घंटे बाद जो कमेंट्स अगर कुछ देखता हूँ तो वो देखता हूँ, उसके बाद मैं नहीं देखता। इसमें फेस ये चीज़ करनी पड़ती है कि वो तुम रिप्लाई नहीं करते, तुम हार्ट नहीं देते, लेकिन हाँ, लेकिन उसमें अब देखिए ना, कितनी देर एक बंदा अब काम भी कर रहे हैं, वीडियो भी बनानी है, उसको एडिट भी करना है, उसको अपलोड भी करना है, और खास तौर पे जो मेरा सेकंड चैनल है वो एक तरह से डेली लाइफ व्लॉगिंग है। तो उसके अंदर मैं कैसे हर 2-2 3-3 घंटे बाद पूरा दिन कमेंट्स वगैरह नहीं पढ़ सकता। तो बस यही है कि यार इसमें खुद को जितना लाइट बंदा कर सके वो कर ले तो बेहतर है, क्योंकि ये एक ऐसा वो बोझ है जो मतलब जैसे जैसे बढ़ता जाता है काम, तो वो बोझ भी उस तरह से बढ़ता है। लेकिन सही है, इतना मुझे अल्लाह का शुक्र है, इतना कोई खास मसला नहीं हो रहा है इस चीज़ से, अपना चल रहा है, सही चल रहा है। अच्छा असद, मेडिकल फील्ड में जो है, मेडिसिन रिलेटेड, बीमारी रिलेटेड, ये वो पाकिस्तान में काफ़ी लोगों के काफ़ी ओपिनियंस हैं, बट you have done videos about breast cancer, about serious topics of the sort, जहाँ काफ़ी स्टिग्मा भी है, काफ़ी लोग कहते हैं कि इस बारे में बात ना करो, ये वो वगैरह वगैरह। Considering your audience is still not at the massive level जहाँ कोई ऐरा गैरा चलता हुआ भी आ जाए गालियाँ देने के लिए, do you feel that your audience so far and the people who have seen your video so far, they're still on board, and is this a concern for you कि जब आगे numbers बढ़ेंगे तो we can't do this sort of shit? To be very honest, मैं बहुत उसको, जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो हमने अप्रोच किया था, आपने, आई एम ग्लैड यू मेंशन्ड इट, कि उसको बहुत हमने सेंसिटिवली अप्रोच किया था, बिकॉज मैंने 2-3 ब्रेस्ट सर्जन से बात की थी, एंड दे वर विमेन जो एक अच्छे अस्पताल में काम कर रही हैं। वो कह रही कि I'm unsure of how you will approach this, because तुम्हारा चैनल एंटरटेनमेंट ड्रिवन है। Yeah. तो आई डोंट नो कि तुम उसको कितनी सेंसिटिवली अप्रोच कर सकोगे। तो वी वर्कड रियली हार्ड टू मेक श्योर कि वो मैसेज भी चला जाए, एंटरटेनमेंट भी रहे, लेकिन उसका मजाक ना हो। सिमिलरली वी आर वर्किंग ऑन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक प्रोजेक्ट, एंड this is a very big project. I think अगर ये, और this is something that I wanted to do always. तो एक foreign country में एक PhD researcher है who is who's gauging कि वो किस तरीके से पाकिस्तानी audience react करती है sexual and reproductive health related content के ऊपर। तो it's like a proper research that spans like 3 months, और बहुत ही interesting सा project है। I do plan to go ahead with these things. मुझे पता है कि उसके अंदर बैकलैश का एरिया है, बट इट्स जैसे कि इरफान मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि
it's an interesting challenge. Like it's something that's very important to talk about, but it's also very fun to उसके आगे पीछे घूम फिर के बात करना बड़ा मजे का है. It's genuinely fun. जहाँ तक वो बात आती है कि मैं concerned हूँ कि अगर audience grow होती है तो किस तरह के लोग आएंगे. तो yeah, especially if you talk about things like STDs या family planning और ये वो जिसपे बहुत सारे social वो भी आता है ना कि इसके बारे में तो बात करनी नहीं चाहिए, ये गलत है. तो या तो मेरे जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मुझे हिट करने हैं. जैसे फैमिली प्लानिंग की आपने बात की. पोलियो वैक्सीन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आई हैव टू टॉक अबाउट, बट आई एम काइंड ऑफ वेटिंग टू गेट देयर जहाँ पे मैं उसको सही से एग्जीक्यूट कर सकूं. लेकिन जो बात आप लोग कर रहे हैं कि अभी छोटी ऑडियंस होती है तो ऐसा लगता है कि सब लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं. लेकिन जब ग्रोथ होती है और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वो उस तरह की होती है कि वो हर किस्म का भी बंदा आपके पास आता है. And I experienced that for a bit. Irfan bhai gave me a shout out on his story once when I was talking about COVID. क्यों किया? मेरी audience toxic है. क्यों? I had like 30,000 people coming to me. Yeah. And giving me like galia for no reason at all. And I was like, what is happening? Like, क्यों मुझे गालियाँ दे रहे हैं? हाँ. ठीक है. तो भाई बोल, क्या बोल रहा है, जल्दी बता, ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, ये वो इस तरह की बातें हो रही थी. I was just like, what? मैंने तो ये अच्छा I was very new to all of this, तो ये मैंने पहली दफा एक्सपीरियंस किया था. तो I understand किस तरह के लोग हैं, बट मुझे ये भी अंदाजा है कि ये एक वोकल माइनॉरिटी है. Yeah. I feel like they're जो शोर मचाने वाले लोग हैं, बट ये मेजॉरिटी में नहीं है. So I'm okay with that, and I'm just देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता करके गेज कर रहा हूँ कि किस तरीके से लोग सेंसिटिव कंटेंट को embrace करते हैं और किस तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं. And I'm very excited to look forward to some of those topics. Kazi, you're the only one left. बहुत शौक है तुम्हें लोगों से लंबी लंबी डिटेल बातें करने का. And कोई भी मौका मिले तुम कहते हो कि I don't want to restrict myself in my guests and my subjects, but also you have grown up in Pakistan, spent most of your life, if not all of it, here, and तुमने बहुत सारे लोगों को outside and inside of Pakistan देखा है in the field. Is this something, I don't know if this is something you have faced, अगर है तो obviously बता भी दो, with regards to subject policing and people wanting to control what you're saying, but is it something you are concerned about in the future when you hopefully do grow further and further? Ali bhai, to Gul's point and Irfan bhai's point, I think our proclivity is towards cancelling and censoring and doctoring other people instead of just taking a step back and being like, yaar, Ali bhai ne mujhe ek baat boli, maybe I could do some growing. No, fuck that. Cancel these people, shut them down completely, kill them if you have to, right? Because I can't be wrong. And that comes from a lack of metacognition, right? So we don't think about what we think about. Sahi bola Irfan bhai? We don't Metacognition पहली दफा सुन रहा हूँ. Right? But I think what Irfan bhai has done, what Gul's spoken about, what Rana Saab or what Asad is speaking about right now, Asad Allah kamyab kare in his endeavors, I think they're beautiful. I think there is nobility in pushing whatever boundaries we can push. I think that is essential. I think censorship bilkul hai, and it comes from two things. One, we're so comfortable in just shutting the other person up, so we don't have to defend our views. एक आपको जब divine वो मिलता है या अगर आपको एक मतलब authoritative stance आप ले लेते हो, sorry, अगर आप एक authoritative stance ले लेते हो कि भाई I don't have to explain myself to you, it's a very good feeling. Yeah. Ali bhai, you should shut up because I don't have to explain myself to you. Yeah. Right? And the other thing is, because if I accept you and I have some form of metacognition, then I'm going to have to change, and changing is very painful and it's very difficult. And I think that's where it comes from. And I think I had आपने video में नहीं देखा होगा, but when Gul was speaking about, like I felt bad because legacy media can't improve. I had a very visceral reaction. Like यहाँ पे metal concert चल रहा था, इरफान भाई थोड़े परेशान हो गए थे यहाँ पे. Yes. But yeah, as far as policing goes,
I take that very personally because it's been a part of my personal life. Ke bhai, you know, they did their job. His father did his job. Again, I don't know them for shit, right? So again, it's just, I disagree with you. There's no room, and I suppose in a very twisted way, the podcast comes from my place of yaar dekho, no, there's almost nothing that merits killing another person or hurting another person like this. वो बहुत ही कोई heinous crimes होते हैं, उनकी जाहिर है वैसे भी पाकिस्तान में वो crimes तो होते नहीं हैं, आपको तो पता है, rape murder वगैरह ये सब तो होता नहीं है. I don't know, दूसरे मुल्क में होता होगा, but जी Asad, you wanted to say something. I just wanted to add on to what Qazi is saying, कि जो ये metacognition की जो बात कर रहे हैं उसकी वजह से जो cognitive dissonance जो experience करते हैं लोग. Hey, we have another one. तो अच्छा, what I was thinking about on this कि मसला पता है इसका जो core है, you can exclude this from the episode if you want to, but I feel the core of it is कि जब हम लोग के पास एक limited piece of media होता था, टीवी जो कि state owned है, वो moderate कर रहे हैं कि क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है. न्यूज़पेपर state owned है, पता चल रहा है कि क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है. Everything is moderated. The information that you're getting is moderated. तो अब क्या होता था कि उस वो information एक तो you had no other option but to consider it credible. B, it had to align with the state and the nation's narrative. क्या कहते हैं integrity. कि बस हम लोग ये morality हमारी तो उसके साथ साथ चलेगा. With the advent of social media and everybody getting a microphone, everybody getting technically a newspaper in their hands, everybody getting a TV channel in their hands. एकदम से जो bombardment हुई है information की, now हम लोग वही जो standards हैं जो हम TV देखते थे और newspaper पढ़ते थे, वही standards अब हमारे दूसरों के ऊपर impose करने शुरू हो गए. आप अगर बात नहीं करेंगे तो आप अपनी आवाज नहीं उठा रहे, अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा रहे तो गलत हो रहा है, आप ऑप्रेसर का साथ दे रहे हैं. अगर आप ये गलत बात बोल रहे हैं तो आप हम सबको गलत बातें सिखा रहे हैं, आप हमें बुरी सिखा रहे हैं, आपका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर गलत है. That's kind of snowball huge thing कि हर individual YouTube channel is now participating into shaping जो कि गलत thought process. ठीक है, काजी will come to you quickly before we go towards the end. जी काजी बताएं जल्दी से. हाँ, if you have to cut Asad's segment, I will just a more politically correct way of saying is कि आपको जो है we as a nation are plagued by false dichotomies. Right? False dichotomies are basically कि हम we set questions up as such. We set questions up as such कि हमें लगता है कि हम किसी को choice दे रहे हैं. These are yes/no questions, but there really isn't a choice. Right? So Ali bhai, do you agree with me or are you stupid? There is no third option. एक ज़माने में जैसे कुछ ममालिक में जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है ना, तो कुछ जनरल्स जो हैं वो रेफरेंडम्स कराते हैं, और वो कुछ जनरल्स जो रेफरेंडम कराते हैं ना, उसमें ये नहीं होता कि क्या मैं प्रेसिडेंट रहूं या ना रहूं, वो ये होता है कि क्या आप चाहते हैं कि ये मुल्क हमारे मजहब का एक किला बने या नहीं. So कौन करेगा. खैर, with that we'll come to the last very quick section. I'm sorry I've taken up so much of your time. जल्दी से जरा आप मुझे बता दें, ये साल तो हो गया खत्म, सारी अच्छाइयाँ हुई, बुराइयाँ हुई, dichotomies हुई. What is your plan for your channel next year? What do you hope to achieve, Gul? Like I said, कि मेरी baseline, and by Mary I mean like the way we approach ideation and content planning, that has now become web series. So we will continue doing sketches and conversations on the side, but web series is something that we're hoping that is going to populate our content calendar for 2021. We are currently in conversation with a couple of people के this is how you can become a part of next year. क्योंकि इसमें ये भी हुआ है कि जिसमें 2020 was a little bit of trial and error कि अच्छा लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं है, पेंडेमिक आया, are we being responsible, नहीं आते, काम नहीं करते. But with 2021, what we are sensing is, and what we are seeing in a lot of conversations is, they know कि the COVID is here to stay and they have to work around it and they have to work with it. तो content तो निकलना है. They've also realized कि लोग घर पे बैठे हुए हैं, content के अलावा कुछ और चीज नहीं देख रहे वो.
वर्क फ्रॉम होम छोड़ के जो है वो कंटेंट पे लगे हुए हैं. I don't know what So you're the more the better of it. Acha. So yeah. And also, do you want to talk about the other food related venture, or is that not something we discuss here? No, we can. The family has had a new addition. It's called We Love Food, and food is something that everybody is interested in. मुझे खाना बनाने से मौत आती है, लेकिन मैं खाना बनाने की वीडियोस देखती हूँ. मैं एक जमाने में BBC फूड बस Bro, I love बैठ के BBC देखा करती food. थी. Oh. और मेरी अम्मा, मेरी वालदा पूछती थी कि ये सिर्फ देखोगी या बनाओगी भी, और मैं कहती थी हाँ सिर्फ देखूंगी, बनाऊंगी तो बिल्कुल भी नहीं. So clearly there is value in food videos being watched on it. बिल्कुल. So we are starting off with just your traditional food preparation videos, and then we have plans on expanding that also. Okay, how can that be different? How can that not just be any other cooking show, no any other travelogue जिसमें खाना बनते हुए आप explore कर रहे हैं? What else can we do? Especially with stories, because I feel like Peely, जो हम एक चीज समझते हैं कि Peely की जो backbone है वो storytelling है. At the heart of everything there is storytelling. It's not just we like to hold on to our storytelling strength. So how to bring that also to the new edition? ठीक है. So, yeah. फूड से प्रॉपर सेगवे बनता है राना साहब की तरफ. राना साहब, इससे पहले कि आपका इंटरनेट फ्रीज हो जाए, जल्दी से आप बता दें कि 2021 में क्या इरादे हैं आपके. एक ज़माने में हमारी बात हुई थी कि हाई एंड उसकी तरफ जाने का आपका एक प्लान था. आई थिंक वो अभी तक रियलाइज शायद नहीं हो सका कोविड की वजह से, बट वो कोई और इरादे 2021 में RHS के दोनों चैनल्स पे क्या हो रहा है? जब भी आप मुझे बुलाते हैं ना तभी मेरे इंटरनेट पे कुछ होता है. वैसे मैं हर चीज़ साफ सुन रहा होता हूँ, सब चल रहा होता है. अच्छा यार, उसमें जो मैंने पहले आपको बताया था कि मैं कुछ सीरीज़ एक अलग से बनाना चाह रहा हूँ जिसमें स्ट्रीट फूड इतना ज़्यादा नहीं होगा. उसमें मैं एक प्लान कर रहा था कि स्ट्रीट फूड तो अपना चल ही रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हो कि जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं या कुछ जो चीज़ें, मतलब आप सोच लें कि अगर कोई पिज़्ज़ा है या कोई इस तरह की, एक ऐसे ही कह रहा हूँ, तो वो उन चीज़ों की प्रॉपर एक मेकिंग टाइप सीरीज हो कि उसमें वो ऐसा ना हो कि मैं एक कैमरा हाथ में पकड़ के चलता फिर रहा हूँ. अच्छा. हाँ, उसमें एक प्रॉपर कैमरा सेट हो, ये हो वो हो, इस तरह की कुछ चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ. एक तो वो है माइंड में. उसके बाद ये अपलोड कब होगा? अगले मंडे, तो आई गेस 20 शायद होगी डेट. ओह अच्छा. तो उसके अलावा 21 में जो है वो 21 में कुछ और प्लान्स हैं. कुछ बाइकर का खिताब शायद लग जाए हमारे साथ जल्दी. मैं पूछने वाला था. तो वो भी एक चेंज आएगी जो चैनल के लिए बहुत बड़ा चेंज होगा, क्योंकि उसमें कुछ जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो एक अलग चीज़ है. तो वो फिर तभी मेरे ख्याल से 21 में ही नजर आएगा तो ज़्यादा बेहतर है. ठीक है. हाँ. असद साहब, आप बताइए, आपके क्या इरादे हैं? 6 महीने बाद आप मुल्क छोड़ रहे हैं allegedly, बट अगर ये ना हुआ या जब तक, व्हाट्स द प्लान फॉर 21? तो अगले 6 महीने में इसी तरह से अप्रोच कर रहा हूँ कि आई हैव नथिंग टू डू, जस्ट कंटेंट, और वो सब कंटेंट के अंदर जो मैं हमेशा से करना चाहता था. तो अपने दोस्तों के तवज्जुह से आई गेट टू एक्ट इन डिफरेंट स्मॉल प्रोजेक्ट्स, व्हिच इज आल्सो वेरी अमेजिंग. आई रियली एंजॉयड योर अपीयरेंस इन दैट. उसका मैं नाम भूल गया हूं क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, बट व्हाट वाज द नेम ऑफ द थिंग दैट यू मेड द वीडियो फॉर? Free Fire. It's a mobile game. Yes, they had a really great video, and your character was quite extremely enjoyable. और मुझे जो आपको कमीज जो पहनाई थी ना असद साहब को, एज इरफान मुझे सारे पैसे उसके, लेकिन खैर. हाँ जी, बताएं आप. तो अपने दोस्तों के जरिए और इस YouTube के कम्युनिटी के जरिए आई एम अपनी जो ख्वाब होते हैं वो पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ अगले 6 महीने. एंड इस आपके ही प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से आई विल pitch to Gulzeb and Kazi and Irfan Junejo and Rana Hamza Saif कि अगर मेरे साथ collaboration करनी हो तो I'm always जबरदस्त. and प्लीज सर असद प्लीज टाइम मिल सकता है सर. तुमने अभी लाहौर आ रहा हूँ. कोलैबोरेशन की बात तुमने की, उसका इंटरनेट फिर बंद हो जाएगा, बट खैर. हाँ.
तो मतलब तो the next 6 months मैं उसको treat ऐसे कर रहा हूँ कि just have to do what I want to do completely, like no hold bars, nothing. अच्छा, तो ठीक है, जी ठीक है. और More power to you then, and I hope आप ये कर भी लें, क्योंकि बीच में जो गैप्स आ रहे हैं. एक बात थी कंसिस्टेंसी के बारे में हमने बात नहीं की, बट खैर है उसकी को भी अगली दफा अगले साल कर लेंगे. Coming over to the Qazi and Irfan window, whoever wants to go first, आपके अगले साल में क्या हो रहा है? Irfan, you said there's going to be a third channel, maybe in English, stuff like that. क्या इरादे हैं आपके 2021 के अभी जो तुम्हें दिख रहा है? मेरे इरादे ये हैं, मैं आपको चैनल वाइज बता देता हूँ. फॉर माय सेकंड चैनल जो 2.0 है, उसका इरादा ये है कि अभी भी जो चल रहा है वो यही है कि उस पर कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड नहीं होती जिसको एक दिन से ज़्यादा लगता है बनाने में. तो इट्स लो एफर्ट, चाहे एंड स्ट्रीम्स, अ लॉट ऑफ स्ट्रीम्स, वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं. एंड देन जो तीसरे चैनल वाली बात है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं डिजिटली अगर मुझे मुल्क से माइग्रेट करना हो तो मैं पाकिस्तान में रहते हुए कर लूँ. तो अगर मैं एक इंटरनेशनल ऑडियंस बना लेता हूँ, उसी वजह से आप देखेंगे कि मेरे चैनल पे अभी कोई 30-40% वीडियोस सबटाइटल हो चुकी हैं और बहुत जल्दी सारी भी हो जाएंगी. आई एम ट्राइंग टू बिल्ड एन इंटरनेशनल ऑडियंस, क्योंकि मॉरल पुलिसिंग और सेंसरशिप का जब हर वक्त तलवार लटकती रहे तो दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू. और जहाँ तक मेरे मेन चैनल की बात है, वहाँ पे मैं हाई प्रोडक्शन स्टफ करना चाहता हूँ. मैंने इक्विपमेंट अपना पूरा ओवरहॉल कर लिया है, और फूड इज समथिंग दैट आई ऑल्सो वांट टू एक्सप्लोर. लेकिन राना हमजा से बिल्कुल ऑपोजिट जाते हुए आई वांट एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड. मुझे स्ट्रीट फूड में हमेशा से बहुत शौक है, तो आई वांट डॉक्यूमेंट दो स्टोरीज एंड हाउ दे मेक इट और उनकी क्या कहानियां हैं. एक वीडियो मैंने ऐसी की थी और उसका मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा था, तो आई वांट टू परस्यू मोर ऑफ इट. तो मेरा बस मेन चैनल का एक ही इरादा है कि मैं अपने लिमिटेड बजट में और मेरी 2-3 लोगों की छोटी सी टीम में जितना मैं नेटफ्लिक्स की प्रोडक्शन लेवल के करीब से करीब दिख सकूं विजुअल क्वालिटी, तो दैट इज गोइंग टू बी माय गोल. ठीक है. एंड फाइनली लास्ट बट नोवेयर लीस्ट, काजी साहब, आपके क्या इरादे हैं 2021? Ali bhai, my irada is to just keep going. It's been a wonderful journey, alhamdulillah. It's been very interesting. I've learned lots, quit my job and all that shit, and that was fun. But just to keep going, and you know, इस मुआशरे में ख़वातीन को ज़्यादा, लेकिन हज़रात को भी, you're taught not to trust yourself. You're taught to follow protocol, follow, you know, whatever's been, conventions have been set out for you. At 28 years old, for the first time, I was like, yeah, I'm just gonna do what makes sense to me, with the caveat of not hurting anyone. So I suppose I'm just going to keep doing, inshallah, what makes sense to me. And I'm going to keep trying to not hurt anyone, offend anyone, whatever. And Irfan bhai bolte rehte hain, and I really like that quote, sar niche kaam upar. उसमें मुझे परेशानी होती है कि नजर कैसे आएगा आगे, सर अगर नीचे होगा तो ऐसे जा रहा हूँ किसी को जाके सर मार दूंगा. अली चौधरी से कभी ये सवाल पूछा नहीं किसी ने, लेकिन हाँ मैं क्लिप भेजता हूँ जरा. हाँ, but that's it. And again, you'll take over the flow in a second, but I just want to say this is a beautiful initiative. I think we need people like yourself to bring us all together. And I think अगर एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं की ना, तो जितने भी अच्छे कंटेंट बन जाए, जितने भी millions of followers आ जाएं, कुछ नहीं होना हमारा. So the only way forward is together, inshallah, as cliched as that is. And yeah, I think this is a beautiful thing, and I've had a blast. And I've had 2 Red Bulls as well. Yeah, I saw the first one went by very quickly. मतलब एक ही घूंट में. The second one was destroyed. खैर, I went to Qazi last क्योंकि हाँ जी, असद बताएं. Completely agree with him. You know, the only way forward is together. So whenever you guys want to work together, let me know. This guy, he's just like so what's up? Plug City resident Asad. I went to Qazi last because I knew he would find a way to bring it all together. ये जो है ना, ये असल में synergy. There's I don't know कोई फिल्म थी उसमें someone talks a lot about synergy and वो end में ये कर देता है. तो ये एक मजाक अब fit हो गया. But खैर, I went to Qazi at the end because I knew he would have a nice way to wrap all of it up.
थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग. बहुत शुक्रिया, आप सबने वक्त दिया. कहने की देर थी, राना हसाब गायब हो गए. बोले वक्त ही तो नहीं दे सकता. But yeah, I think it's good. We had a few people who could not join. अगर वो आ जाते तो अच्छा होता. But कोई नहीं. Thank you all for coming, and I think we'll try and do this again next year, perhaps in person अगर किस्मत हुई हमारी. वरना तो I think इरफान जुनेजो से तो था ही, लेकिन आप सबसे भी हम एक 6 month recurring contract कर लेते हैं कि 6 महीने में एक दफा तो आप चक्कर लगा ही लें TPR Pod. ठीक है जी. TPR Pod group account, Instagram, all their links, you know who they are. Their links will be below. I'm going to stop recording. This has been the longest podcast I think I've done so far. And That's what's up. yeah. Okay ji. I'm going to stop recording. Allah Hafiz.